جی اسٹارٹ. 5 سے کاؤنٹ میں دیتا ہوں 5 4 3 2 1. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام اویس اقبال ہے اور میرے ساتھ آج گجرانوالہ سے صبغت وائن صاحب تشریف لائے ہیں اور ہمارے درمیان یہ طے پایا ہے کہ آج ہم سوشلزم کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کیپٹلزم ہے وہ کس طرح سے انسان کی ڈیولپمنٹ کے اندر ایک ہنڈرنس ہے، اور کیا جو پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے، جو ارتکاز دولت ہے، جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے، وہ کس طرح سے انسانوں کو انسانیت کے لیول سے گراتی ہے. ہم کس طرح سے یہ بات امیجن کر سکتے ہیں کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہوں اور میں پوری دنیا کی عیاشیاں کرتا پھروں ایک مہینے کے اندر، اور میرے ساتھ والی جھونپڑی کے اندر جو بچے ہیں وہ غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوں. تو بیسیکلی یہ جو ہیومن مزری ہے، اس ہیومن مزری کو ایڈریس کرتا ہے سوشلزم. اور آج لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشلزم جو ہے وہ انسانی مسائل کا حل نہیں ہے. میں اس کیس کو بلڈ ایسے کرتا ہوں کہ جو ایک انٹرپرینیور ہوتا ہے جو کہ ایک پرائیویٹ بزنس شروع کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اسے اس پرائیویٹ بزنس کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس پرائیویٹ بزنس کو کبھی بھی شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے اور اپنے ریسورسز کو ریلوکیٹ کر سکتا ہے کسی دوسری پروفیٹیبل اینٹی کی جانب. لیکن گورنمنٹ کے پاس جب ایک بزنس انٹرپرائز یا مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کو آپ نے ہر صورت میں وائبل بنانا ہے. لیون ٹروٹسکی جو تھا وہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی کا پروپوننٹ تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ سوویت پولٹ بیورو کے اندر 7 جینیس بھی بیٹھ جائیں، 7 مارکس بھی بیٹھ جائیں، 7 لینن بھی بیٹھ جائیں، تو بھی وہ یہ بات کا اندازہ ادراک نہیں کر سکتے کہ سوویت یونین کے شہر والگوگراڈ میں اس وقت کتنی ڈبل روٹیوں کی ضرورت ہے. تو جو ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی ہے وہ بیسیکلی کیپٹلزم کی روح ہے. تو میں صبغت صاحب اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ سے صرف اور صرف یہ جاننا چاہتا ہوں ایٹ اے ویری پرسنل، جو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، مثال کے طور پر نعمان خواجہ صاحب، یہ دبئی میں 20 سال لگا کر آتے ہیں، پیسے شیسے کماتے ہیں اور اس کے بعد یہاں کر یہ ایک پرائیویٹ بیکن ہاؤس اسکول کھول لیتے ہیں جس کی ویلیو 25-30 کروڑ ہوتے ہیں. اچانک جو سوشلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا یہ اسکول ان سے چھین لیا جائے اور تمام غریب بچوں کو تعلیم دی جائے. تو مجھے یہ بتائے کہ کس اخلاقی اصول کے تحت آپ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو کنفسکیٹ کر سکتے ہیں صبغت صاحب؟ یہ پہلا سوال ان کا ہے کہ کس اصول کے تحت ہم ان کی پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے بیکن ہاؤس اگر انہوں نے بنایا ہے، چلے بیکن ہاؤس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہیں سے کرنا ہے نا، ایک بندہ دبئی سے 25-30 کروڑ آپ نے کہا ہے اگر لے کر آتا تو، لیکن بیکن ہاؤس کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو بیکن ہاؤس اس طرح سے نہیں تھا شروع ہوا. بیکن ہاؤس کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے فنڈنگ کی تھی اور کہا تھا کہ ہم غریب طلباء کے لیے ایک ایجوکیشن کے لیے ان کے لیے اسکول بنا رہے ہیں، ایک پاکستان کے طلباء کے لیے، اور انہوں نے باقاعدہ یورپ سے یہ فنڈنگ لے کر بنایا تھا بیکن ہاؤس. گجرانوالہ میں ہمارے بنا تھا یہ ایک قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول. اس اسکول کو جب وہ بن رہا تھا، اس کے اسکول کے قائم کرنے میں ہم سرکاری کالجوں میں پڑھتے تھے، ہر بچے نے 10-10 روپے ٹکٹ لی تھی، اور جب وہ بن گیا تھا تو اس کی اتنی فیس تھی جتنے بیکن ہاؤس سے تھوڑی کم ہوگی اس کی. تو اس لیے یہ تو نہیں، لیکن ان کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اگر کوئی بندہ 25-30 کروڑ روپے دبئی سے کما کر لاتا ہے اور یہاں پر بیکن ہاؤس بناتا ہے تو اس پر ہم کس طرح سے نیشنلائز اس کو کیوں کر لیں گے. اچھا، نیشنلائز کرنے کا جو کویسچن ہے وہ آگے آتا ہے کہ کب نیشنلائز کیا جاتا ہے. وہ صرف بیکن ہاؤس کو نہیں کیا جاتا، وہ پھر سارے کے سارے اسکولوں کو کر لیا جاتا ہے. اور یہ باقاعدہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. جو کانسٹیٹیوشن آپ کہیں گے کہ سرمایہ داروں نے نہیں تھا بنایا، یہ تقریباً ایک سوشلسٹ بھٹو تھا، تقریباً سوشلسٹ، جس نے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، لیکن وہ سرمایہ داروں کی مشاورت سے بنا تھا، 1973 کا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار یا ریاست جس وقت چاہے کسی بھی پراپرٹی کو نیشنلائز کر سکتی ہے. یہ تو سرکار اور ریاست کی بدماشی ہوئی نا. ایک کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن جی ہاں بدماشی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری بدھ والے دن نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنیں گے، بٹ a constitution has to come to the level of common sense. مجھے یہ بتائیں کہ نعمان خواجہ صاحب
جو کہ اپنی محنت کی کمائی سے 25-30 کروڑ روپے 20 سال کی نوکری کر کے لاتے ہیں اور اگلے دن ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو اسکول ہے، حالانکہ جو مذہب ہے وہ بھی پرائیویٹ پراپرٹی کی سینٹٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، آپ کس طرح اس کی ان کی محنت کی کمائی پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ محنت کی کمائی سے 25-30 کروڑ روپیہ دبئی سے لے کر کتنے بندے آئے ہیں میرے اپنے محلے میں، بہت سارے بندے ہیں اس طرح کے جو پہلے نمبر پر تو یہ ہے جو بال کاٹتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، جا کر دردیوں کا کام خیاطی کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں دبئی میں یا سعودیہ میں، کسی کے پاس بھی 25-30 کروڑ روپے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور جن کے پاس جنہوں نے آ کر 25-30 کروڑ لے کر آئے ہیں وہاں سے، وہ زیادہ تر جس طرح اس نے نواز شریف کے مقدمے میں اس نے بالزاک کی ایک چیز کوٹ کی تھی یا شاید ماریو پیوزو کی، اور ماریو پیوزو نے آگے بالزاک کو کوٹ کیا تھا کہ ہر دولت کے انبار کے پیچھے کوئی نہ کوئی جرم چھپا ہوتا ہے، تو 25-30 کروڑ یا اتنی بڑی ایک لے کر آنا جس سے پرائیویٹ پراپرٹی بن جائے، ہمارے نزدیک پرائیویٹ پراپرٹی، پرسنل پراپرٹی اور انڈیویجول پراپرٹی میں فرق ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، تو پرائیویٹ پراپرٹی اس کو ہم کہتے ہیں جس سے آپ بنا کر اس سے صرف روزی نہیں کمانے کا کام کرتے بلکہ دوسروں کی محنت کا استحصال بھی کرتے ہیں، آپ ان کو باقاعدہ کچھ حاصل کرتے ہیں اور کچھ ان سے چھینتے ہیں اور کچھ ان کو نہیں دیا جاتا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں صرف مثال دے رہا نہیں، مجھے میں سرا نہیں چھوڑوں گا۔ نعمان خواجہ صاحب ایک استعارہ ہیں، نعمان خواجہ صاحب اصل میں دبئی سے 25-30 کروڑ روپے کما کر نہیں لائے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ صرف ایک بندہ جو دبئی میں انویسٹمنٹ بینکر ہے 25-30 کروڑ کی پراپرٹی بیکن ہاؤس کی شکل میں بناتا ہے، وہ فیس چارج کرتا ہے، وہ سروسز دیتا ہے، آپ کس طرح سے اس کی پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ کو کسی انسان کی پرائیویٹ پراپرٹی کی سینٹٹی کا احساس ہی نہیں ہے؟ نعمان صاحب کا یا کسی انسان کا؟ کسی بھی انسان کی پرائیویٹ پراپرٹی کی کسی بھی انسان، ایگزیکٹلی، وہ مجھے پلیز بتائیں کہ آپ کس مورل اصول کے تحت اس کی پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم پھر وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ پہلے جاننا پڑے گا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا لفظ سن کر آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے، یہ مجھے بتانا پڑے گا کہ ہم پرائیویٹ پراپرٹی کس کو کہتے ہیں۔ ہم پرائیویٹ پراپرٹی، ایک میرا مکان ہے جو کہ میں نے اپنے رہنے کے لیے جس کو میں استعمال کرتا ہوں، اس کو ہم پرائیویٹ پراپرٹی نہیں کہتے، وہ میری پرسنل پراپرٹی ہے۔ ایک میرا وہ مکان ہے جس کو میں کرائے پر دیتا ہوں اور اس سے جو وہاں پر کرائے پر رہتا ہے وہ مجھے کرایہ دیتا ہے، اور وہ نعمان صاحب ہو یا کوئی بھی، اس نے بڑی محنت سے وہ بڑا پیسہ کمایا ہے اور وہ لے کر اس نے کرائے کے لیے مکان بنایا ہے۔ یعنی پرائیویٹ پراپرٹی ہمیشہ ہم اس کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہوگی۔ آپ نے مذہب کا ذکر کیا تھا، تو مذہب میں بھی جس مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں میں بھی اسی مذہب کی بات کرتا ہوں، اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کچھ دے دو جو کچھ تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے۔ تو پراپرٹی جو پرائیویٹ ہے، ترغیب دی گئی ہے، لا نہیں بنایا، لا نہیں ہے، لا نہیں، ٹھیک ہے، ترغیب دی گئی ہے، لا نہیں بنایا گیا ہے۔ میں مذہب کی بات نہیں کر چلے رہا، ہم بھی مذہب کی بات، مجھے آپ نے کی تھی اس لیے میں کر رہا ہوں، مجھے تو یہ اسی بتا مذہب کے مطابق دیں ایک سوشلسٹ جو ہے کس طرح سے نعمان خواجہ صاحب کی پرائیویٹ پراپرٹی پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی ہاں میں بتا رہا ہوں نا، وہی چیز بتاؤں گا۔ آپ بار بار یہ سوال کیجیے اگر میں ٹھیک سے جواب نہیں دیتا، لیکن میرا جواب جو ہے ٹکڑوں میں مکمل ہو جائے گا بالآخر۔ تو پرائیویٹ پراپرٹی ہمارے نزدیک وہ ہوتی ہے جس میں دوسروں کی محنت کا استحصال کیا جاتا ہے۔ استحصال کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ایکسپلائٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی مشین کو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ مشین کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، جانور کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سرمایہ داری نے، بلکہ تمام طبقاتی سماج میں جب سے یہ سلیوری آئی ہے یا آپ کہہ لیں فیوڈلزم ہے، جاگیرداری یا پھر سرمایہ داری، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان کو شے کے درجے پر گرا دیا جاتا ہے اور اس کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو پرائیویٹ پراپرٹی ہم کہتے ہی اس کو ہے جس میں کسی کہ اگر گھر کی میں نے مثال دی ہے، مکان کی اور گھر کی، کہ میرے پاس دو ہیں، جو کرائے پر لے کر گھر رہنے پر مجبور ہے، ریاست کا یہ فرض ہے ہمارے نزدیک، سوشلسٹوں کے نزدیک، کہ اس کو رہنے کے لیے چھت پرووائڈ کرے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو یہاں پر ریاست ناکام ہے۔ اس ریاست کو ہم تبدیل کر دینا چاہتے ہیں، اور تبدیل کرنے کے لیے سوشلسٹ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جب تبدیل کیا جائے تو اس میں سے تمام کی تمام پرائیویٹ پراپرٹی چھین لی جائے، چھین لی جائے، بالکل چھین لی جائے، بائی فورس، بائی فورس چھین لی جائے۔ آگے سنتے پوری آپ میں اور محمد بن قاسم میں کیا فرق ہے؟ لیٹ می فنش۔ پرائیویٹ پراپرٹی جتنی بھی ہے پوری کی پوری چھین لی جائے، اور پرائیویٹ پراپرٹی کو
प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी की सूरत दे दी जाए, और कलेक्टिव प्रॉपर्टी की सूरत में जिससे छीनी होगी उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन वो उसमें इस्तेसाल का खात्मा हो जाएगा। जब इंसान काम करेगा, जो वर्कर है जितने भी काम कर रहे होंगे, वो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनकी जो सरप्लस बनेगी, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे सरप्लस वैल्यू की, जिसको मुनाफे की सूरत में एक सरमायादार छीन लेता है, वो भी छीनता है। तो जिसको सरप्लस को सरमायादार छीन रहा होता है, वो वाली सरप्लस रियासत ले, और जब वो रियासत को लेगी और रियासत उसी सरप्लस को लेकर अवाम को, हर एक को बराबर में उनको तकसीम करे। क्योंकि इस बराबरी का मैं इस यहाँ से कह देता हूँ कि अगर आप उसको बाकायदा हमारे जो इसको सोशलिस्टों की आप कह लें एक दस्तावेज है, अप्रैल थीसिस उसका नाम है, उस जिसकी बिना पर ये सोवियत यूनियन का जो रेवोल्यूशन है, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा कायम किया था, लेनिन ने आते हुए ट्रेन में लिखी थी। उसमें बाकायदा उसने लिखा है कि किसी भी रियासती एहलकार की, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी तनख्वाह एक फैक्ट्री वर्कर से ज़्यादा नहीं होगी। ये हमारा पूरा ढांचा था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने बगैर किसी लगी लिपटी के इस बात को इकरार किया कि आप बाय फोर्स जो एक सरमायादार है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीनने का इरादा रखते हैं। तो अगर आप सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं और आपका प्रेसिडेंट है सिकरत वाइन साहब, तो आप इसके लिए असलहा कहाँ से हासिल करेंगे? और आप क्या सोशलिस्ट पार्टी जो है जनरल इलेक्शंस के अंदर जाकर कम्पीट करेगी और लोगों को मैनिफेस्टो में बताएगी कि हम बरसरे इक़्तिदार आकर आप सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लेंगे तो आपको वोट नहीं पड़ेंगे? इसका मतलब ये है कि आपको लामहला आर्म्ड रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा। आपको एक बिल्कुल जिस तरह से लेनिन ने किया था, आपको बाकायदा एक इक़्तिदार पर कब्जा करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए लोगों को तरगीब दे रहे हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस करते हुए बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं और एक सोशलिस्ट इनकलाब लाना चाहते हैं। सिकरत साहब, हाँ जी, जो इन्होंने क्वेश्चन किया बड़ा ही अच्छा है, लेकिन मैंने मेरे ख्याल में जब मैंने ये लिखे थे असूल, उसमें एक बात साफ वाज़ेह तौर पर मेंशन की थी, क्वेश्चन जो होगा वो एक एक करके होगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर आप 10 क्वेश्चन करेंगे मुझे उसी देर बोलना, नहीं मैं इसका जवाब दूंगा, इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इस एक सवाल के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना वो छुपे हुए हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चंस का मुझे ज़ाहिर है फिर जवाब देने बारी जवाब देना पड़ेगा। मेन थीम को एड्रेस या ये लोडेड क्वेश्चन इसको कहते हैं, या फेलेसी ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन, या मैनी क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें मसला हो जाता है जवाब मतलब आपने चोरी करना आप क्यों पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई पहले मुझसे ये तो पूछ लो मैं चोरी करना पसंद करता भी हूँ या नहीं करता। ठीक है ना, तो ये एक इस तरह था लोडेड क्वेश्चन था। एक लाइन में पूछता हूं, नहीं आपने क्वेश्चन कर दिया, अब मैंने जवाब देना है। तो ये लोडेड क्वेश्चन था, बाकायदा फेलेसी ऑफ मैनी क्वेश्चंस था, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा आपको। पहले नंबर पर ये है कि आपने पूछा है कि आपके पास असला कहाँ से आएगा और क्या क्या पूछा इन्होंने, और इन्होंने वोट कैसे मिलेंगे, पर मैं कब्जा हम करेंगे। मैं सोशलिस्ट पार्टी का जो बीइंग प्रेसिडेंट वगैरह, हमारा जो सोशलिस्ट पार्टी का जो मंशूर है, खास तौर पर ट्रॉट्स्काइट्स की बात करता हूँ जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, IMT के साथ हमारा, अगर आप उसको आपने जाना होता, मुझे मेरे ख्याल में आपने शायद आप भी मुझे उतना ही जानते हैं जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने पढ़ा नहीं है कि हमारा ताल्लुक किस पार्टी से है, या फिर जिस पार्टी के साथ है आया कि वो आर्म्ड स्ट्रगल पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते, आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा तो आप ये क्वेश्चन ना करते पहले नंबर पर। तो ये दूसरा ये कि इनकलाब जिन्होंने भी पढ़ा है, इवन आपने लेनिन की मिसाल दी है, लेनिन खुद इनकलाब लेकर नहीं था आया। लेनिन जब आ रहा था, मैंने बताया इनकलाब यहाँ पर बर्पा हो रहा था, और जब ये लेनिन आ रहा था उधर से इनकलाबी हालात बन चुके थे, सब कुछ तैयार था और लेनिन को बुलाया गया था। इनकलाब हमेशा मेहनत कश अवाम लेकर आते हैं। हम सोशलिस्ट जो कि सोशलिस्ट पार्टियों की सूरत में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ मुत्तफिक नहीं है, हम समझते हैं कि वो सोशलिस्ट अपने आप को कह रहा है, लेकिन वो सोशल डेमोक्रेसी के रास्ते पर, अगर वो इलेक्शन लड़ने की बात, हम इलेक्शन लड़ने की बात नहीं करते, हम कहते हैं जब भी मेहनत कश अवाम यहाँ पर भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से या लाइलाजी से तंग आकर ये इनकलाब लेकर आएंगे, तो हम उनको लीड नहीं कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। हम उनके फॉलोअर हैं अवाम के। हम ताकत का सरचश्मा और अकल का सरचश्मा, इल्म का सरचश्मा अवाम को समझते हैं।
हम आपको वही कुछ बता रहे हैं जो हमने अवाम से लिया हुआ है, उसको ज़रा सी तरतीब लगा के मैं बता रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम फाज़िल नहीं हूँ। तो हम क्या करेंगे कि अवाम जब इनकलाब लेकर आएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और हम उनको ऑर्गेनाइज होने में मदद देंगे, जिस तरह के लेनिन ने किया था। और लेनिन ने उसी अप्रैल थीसिस में लिखा था, अप्रैल थीसिस में, कि ऑल पावर टू सोवियट्स, तमाम की तमाम ताकत जो सोवियत अवाम ने जब इनकलाब आना था 1917 का, उससे पहले सोवियत बन चुकी थी। सोवियत क्या थी? सोवियत ये थी जिसका नाम आप पढ़ते हैं सोवियत यूनियन, मुझे बताना पड़ेगा सॉरी, कि सोवियत ये थी जिस तरह हमारे ये मोहल्ला कमेटियाँ होती हैं, पंचायतें होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पर छोटे छोटे इलाकों में सोवियत बन चुकी थी लेनिन के आने से पहले, इनकलाब से पहले। और वो सोवियत थी कि अपने अपने इलाकों के जिस तरह काउंसलर होते हैं लोगों ने चुन लिए हुए थे। तो वो कोई मेरे ख्याल में 50-60 हज़ार जो काउंसलर आप कह लें, जो सोवियत के नुमाइंदे थे, नुमाइंदगान थे, जो अवाम ने चुने हुए थे, लेनिन ने आते ही कहा था तमाम पावर मैं उनको देता हूँ, वो फैसला करेंगे कि आपने इनकलाब करना है या नहीं करना। आप मुझे ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी चौक के ऊपर जो रंगसाज बैठा हुआ है, पाकपतन के अंदर जो मजदूर बैठा हुआ है, एक फैक्ट्री वर्कर जो है, वो सारे डाइवो बस का टिकट खरीदें और वो रावलपिंडी GHQ पहुंचे और उसके ऊपर कब्जा कर लें और पीछे से सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रही होगी। आप बेसिकली उनके अवाम के एक रेजिस्टेंस को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कैटलिस्ट के तौर पे। तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग बगैर किसी असलहे के, बगैर किसी गाइडेंस के जाकर पावर मराकज़ के ऊपर कब्जा कर सकते हैं? सिब्बत साहब, ये यूटोपिया है। मैं बताता हूँ आपकी बात का जवाब देता हूँ, बल्कि मैंने क्या जवाब देना है, जो कार्ल मार्क्स ने पहली किताब लिखी थी ना अपनी, जो 25 साल की उम्र में, जो क्या नाम था उसका, क्रिटिक ऑन हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। हेगल की फिलॉसफी ऑफ राइट में जो उसने पहली, जब उसने कम उम्री में 9 उम्री में जो पहली किताब लिखी थी, शायद 1843 की किताब थी, उसमें उसने लिखा हुआ था कि ये आर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म जो है, आर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ आर्म्स का मुकाबला तो नहीं कर सकती, कि रियासत के पास तोपे हैं, बंदूकें हैं, पुलिस है, अदलिया है, इवन जर्नलिस्ट हैं और वगैरह वगैरह, पुलिस है, ये लोग हैं रियासत के पास और इवन वकील की सारे उसातिज़ा हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं उनके पास, एजुकेशन पॉलिसीज हैं, हर चीज़ उनके पास, ब्यूरोक्रेसी। और खास तौर पर उसने कहा था कि आर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म में उनका मुकाबला नहीं किया, उसके साथ क्रिटिसिज्म ऑफ आर्म्स के साथ नहीं किया जा सकता। जब आप हथियारों के साथ तनकीद कर रहे होते हैं, हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते। लेकिन अगला जो फिक्र है उसका अगर आप पढ़े ना, उसने कहा था कि जो नजरिया है अगर वो दुरुस्त है और वो जब अवाम के ज़हनों पर अपना छा जाता है, तो ये सब हथियारों से ताकतवर हथियार बन जाता है। अवाम खाली आज जब निकले, जहाँ पर भी निकले, वो जहाँ पर भी निकले, तो मुझे वो इंडियन फिल्म थी शाहरुख खान की, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जिसमें सारे लोग सड़कों पर निकल आते हैं और जाकर वो क्या कहते हैं, एक इनकलाब लाने की। श्रीलंका देख लें आप। नहीं, मुझे लेट मी कंप्लीट सर। आप मुझे बार बार सोशलिज्म की क्लासिकल बुक्स की मिसालें दे रहे हैं कि आर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म ऑफ आर्म्स में क्या फ़र्क है। मैं आपसे सिंपली ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ऐलान के बाद कि आपका डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, इंतखाबात में आने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आपके ख्याल में उनकी ज़रूरत से ज़ायद है उसको कन्फिस्केट करने का ईवल प्लान भी रखते हैं, और उसके अलावा आप लोगों से ये तवक्को करते हैं कि वो अपने घरों से निकलें, वो अपने सीने पर गोलियां खाएं और वो इनकलाब लाकर आपको प्लेट में पेश कर दें। और अगर आप इस तरह से इनकलाब लाने में कामयाब हो भी गए तो बकिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जिनके साथ आपके कर्जों के मुआहदे हैं, जिनसे आपके बोइंग तैयारों के पुर्जे आते हैं, आप उनके साथ कैसे डील करेंगे सिरवत साहब? बारी बारी कर ले सवाल, तो मैं बारी बारी जवाब देता जाता हूं। नहीं, इस ये काफी मेरे ख्याल में 6-7 क्वेश्चन से आप वन बाय वन करें, आप कैसे इक्तदार पर कब्जा करने का इरादा है, वन बाय वन करें ना। सिंपल। तो नहीं, जो पहला आपने जो इसमें काफी सारे आपने क्वेश्चंस भी किए हैं, इल्जामात भी लगाए हैं, तो मैं चाहता था कि वो बारी बारी जो है वो कर लिए जाए। पहले नंबर पर तो ये आप कह रहे थे कि इक्तदार पर कब्जा प्लेट में रखकर हमने कहीं बात नहीं की। मैंने पहले कहा कि हम आवाम को फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। फॉलो करने का ये मतलब नहीं कि हम सबसे पीछे चलेंगे, गोलियां वो खाएंगे, हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे
उनके अंदर जाएंगे, उनके अंदर इसी तरह बैठकर जैसे हम स्टडी सर्कल करते हैं, जिस तरह यहाँ पर आ गया हूँ इस तरह हम जाकर बात करेंगे, उनके साथ बहसें करेंगे, मुबाहिसे करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने एक बंदे को चुन लिया है तो ऑल पावर टू दैट पर्सन, उसने कहा था कि जिसको लोग चुनते हैं ना, अगर गुजरात के लोग चौधरी परवेज इलाही को चुन लेते हैं तो चौधरी परवेज इलाही आपके साथ चलकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ, अगर गुजरात के लोगों की ये जो मिसाल दे रहे हैं, ये एक क्लासिकल, इन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया कि मैं क्लासिकल बुक्स से क्यों मिसालें दे रहा हूँ। नहीं सर, मुझे आप बताता हूँ, मैं वो भी पहले वो वाला भी क्लियर करूँ। आप क्योंकि 10 सवाल कर देते हैं, मुझे हर एक का जवाब देना पड़ेगा, तो ये तो फिर मेरी सवाब दी देना, मैं किस सवाल का पहले देता हूँ, किस सवाल का बाद में देता हूँ। तो ये है कि पहले आपने मुझे कहा है कि मैं क्लासिकल बुक्स ये है कि आप क्वेश्चन वो वाले कर रहे हैं जो कि किताबों में इस तरह से लिखे हुए 200 साल से लिखे हुए हैं। उन सवालों को करने की जरूरत नहीं थी कि हम आर्म स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम क्या क्या कर रहे हैं। वक्त आने पर करते भी हैं, वक्त आने पर तो कोई भी करता है, और खास तौर पर सोशलिस्टों में अमन के दिनों में कोई फौज नहीं होती, सारे के सारी जो फौज है वो फैक्ट्रियों में काम करती है और मुल्क को तरक्की से दो चार करती है। आपने यहाँ पर एक जो स्टार्ट जहाँ से किया था वहाँ पर भी लिखा था कि कैपिटलिज्म किस तरह से हिंड्रेंस है सोशलिज्म के राह में। अभी मैंने उसका भी जवाब देना कि किस तरह से है। तो और लेकिन जंग के दिनों में पूरे का पूरा अवाम, अगर यहाँ पर 24 करोड़ अवाम है तो 24 करोड़ की फौज होगी हमारी। हमसे दुनिया की कोई ताकत जो है वो नहीं जीत सकती। मतलब वार के दिनों में आप इक़्तिदार पर कब्जा कर, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वो 24 करोड़ अवाम जिनको मैं 24 करोड़ की फौज कह रहा हूँ, अगर वो चाहते हैं कि परवेज इलाही बने तो फिर परवेज इलाही बने। जमहूरियत पर हमारा 100% यकीन है। लेकिन जमहूरियत प्रोसेस में यकीन ही नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने कहा हम जमहूरियत में जाएंगे, इलेक्शन में कहा। इसके अलावा जमहूरियत क्या है कि वो भावलपुर से निकले, वो अहमदपुर शर्किया से निकले, वो मुल्तान से निकले और रावलपिंडी पहुंचकर फौज के जीएचक्यू पर कब्जा करे और उसके बाद इस्लामाबाद में पार्लियामेंट को डिसबैंडन करे और कहे कि आज से ये सोशलिस्ट रजीम है और इसमें तमाम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिव होंगे। सर ये आप ना थोड़ा सा इसको जान ले कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसको कोशिश करें समझने की, फॉलो करने की आप भी कोशिश करें। जो फौज है आप उसको मेरे ख्याल में 7-8 लाख फौज की बात कर रहे हैं, हम वो नहीं बात करते। हमें पता है जो 7-8 लाख फौज है वो हम में से है, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। आपको उठाते हैं? मैं बताता, हाँ मैं उठाते हैं, लेकिन किन के हुक्म से उठाते हैं ये भी देखे ना। वो भी आप में से? हाँ नहीं, वो हम में से नहीं है। अच्छा। हम जो है ना 2 तबकात पर यकीन रखते हैं। जो दूसरा तबका है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन मेहनत कशों की, वो फौज जो है ना जो वक्त, वो उसके सारा असला तो उनके पास होता है। सिर्फ 2 तबकात, जब सिर्फ 2 तबकात, लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? सिर्फ 2 तबकात। वो कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ 2 तबकात, ये उधर है और ये इधर है? वो लाइन कैसे? एक मेहनत करने वाले हैं और एक मेहनत का इस्तेसाल करने वाले। इनके अलावा तीसरा कोई तबका को कैसे डिफाइन? चले मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे बहरहाल अभी तक पिछले 15-20 मिनट की मेहनत से इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं मिला कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से इक़्तिदार पर काबिज होकर मींस ऑफ प्रोडक्शन को कौमाना चाहती है। सर मुझे लेट मी आस्क, लेकिन आप नाम ही गलत ले रहे हैं। हमारी IMT है, मैंने मिसाल दी है सर, मैंने मिसाल दी है। आपकी IMT हो, XYZ हो, ABC हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी, अब चले ठीक है, आप मुझे आपने ये कहा कि आप ट्रॉट्स्काइस्ट हैं। मुझे ये बताएं कि क्या लियोन ट्रॉट्स्की जो था वो एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी पर यकीन रखता था? जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले आपकी पहली वाली बात का जवाब दूंगा, ठीक है? वो ये कि इस बात से हमें फर्क पड़ता है कि हमारा नाम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान है या IMT है। ठीक है, IMT इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट टेंडेंसी, हम स्टार्ट में ही वो उस इंटरनेशनल से ताल्लुक रखते हैं जो कार्ल मार्क्स ने पहली बनाई थी। कि पहली इंटरनेशनल थी, दूसरी जिन्होंने तारीख पढ़ी उनको पता होगा, पहली इंटरनेशनल, दूसरी इंटरनेशनल, तीसरी इंटरनेशनल और ये आजकल चौथी इंटरनेशनल चल रही है। यानी आपका जो सिलसिला नसब है पहली IMT से जाता है। जैसे भी आप कह लें, जो भी आप, वो कोई बात नहीं है, तंज करना आपका राइट है। अच्छा, तो जो इंटरनेशनल का मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसका जो आखिरी फिक्रा है, उन पर अगर आप गौर करें ना कि सारी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ या मेहनत कशो एक हो जाओ, मेहनत करने वालों, तो इसका मतलब है कि हम एक मुल्क में इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए काम नहीं कर रहे। उसकी बजाय हम पूरी दुनिया में जिस तरह से एक इस्तेसाली निज़ाम, सरमायादारी कायम है, हम पूरी दुनिया में उस निज़ाम को उल्टाने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे उल्टाएं? हम, हाँ कैसे की बात में स्ट्रेटजी की कि कैसे उल्टाएंगे, क्योंकि आप जगह पर काम करके नहीं है ना। मुझे ये बताएं कि आप पर आप बात कर सकते हैं। मुझे ये बताएं
کہ ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کی فزکس لیب کے اندر مہینے کے 4,000 پاؤنڈ اسکالرشپ لینے والا جو سائنٹسٹ ہے، جو دن رات ایک کر کے کوانٹم فزکس کے اوپر کام کر رہا ہے، آپ کے نزدیک محنت کش نہیں ہے؟ محنت کش ہے. اچھا، وہ آپ کے نزدیک محنت کش ہے، کیونکہ آپ کے جو محنت کش تھے وہ پیسے کدالیں اور درنتیاں وغیرہ اٹھایا کرتے تھے، فیکٹریوں میں کام کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ نے چلے اس کو آگے جو وائٹ جو کیا کہتے ہیں ایک عام آدمی ہے جو پروفیسر ہے، اس کو بھی آپ نے ایک محنت کش قرار دے دیا. اب میں آپ کو اس کا جواب دے دوں، چھوٹا سا اتنا سا. ہمارے نزدیک محنت کش جو کہ ایک تو اس کو بیس لیو ہے، تنخواہ کی غلامی کرتا ہے. میرے خیال ہے کون نہیں ہے یہ بتا دیں تو. دوسرے نمبر پر یہ ہے جو استحصال کر رہا ہے وہ نہیں ہے، ایک بات. اور دوسرے نمبر پر جو طبقے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ بندہ جو کہ جس کو آپ پوچھ رہے ہیں کیا کہ وہ محنت کش ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے طبقے میں ہے یا نہیں ہے، طبقہ نمبر 1 میں ہے یا طبقہ نمبر 2 میں ہے، وہ چاہے بالکل تھوڑی سی تنخواہ، آپ 4 لاکھ پاؤنڈ شاید یا 4,000 پاؤنڈ آپ نے کہا، پتہ نہیں کتنا کہا، ویسے دونوں برابر ہی ہیں تقریباً. اگر وہ 50 پاؤنڈ پر بھی کام کر رہا ہے لیکن ہمارے مخالف طبقے کے ساتھ کھڑا ہے آپ کی طرح، تو ہمارے لیے وہ آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے طبقے سے نہیں. جی کریں بات. اچھا، مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنی گفتگو میں کہا، مجھے ابھی تک ویسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا اقتدار پر قبضہ کرنے کا میتھڈ کیا ہوگا. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے ایک ملک پر قبضہ نہیں ہے، سارے ملکوں کے اوپر قبضہ ہے، پوری دنیا پر قبضہ ہے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں غلبہ چاہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہر بڑی دولت کے پیچھے کوئی جرم چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا اور آپ نے اس کو انڈورس کیا. مارک زکربرگ کی دولت کے پیچھے یا ایلون مسک کی دولت کے پیچھے کون سا بڑا جرم چھپا ہوا ہے سر؟ مارک زکربرگ کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن اس کے بعد میں ادھر بھی جاؤں گا. مارک زکربرگ کے لیے آپ ایک فلم آئی تھی سوشل نیٹ ورک، آپ کو پتا چل جائے گا اس نے فلم میں دیکھ لیجیے، بتا دینا دیکھ لیجیے نا کن کی محنت تھی اور کون اس سے. اچھا چلے میں پھر اسی پر آ جاؤں، ایک ہی چیز پر بات کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کو بھی آپ نے پورا سوال کیا کیا. میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ اس وقت جو اگر آپ نا ایک سوال جو ہے نا وہ چھپا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر میری یادداشت اتنی کمزور ہے جواب ہی نہیں دیتے ہیں. ایکسکیوز می، آپ ایک سوال جب کرتے ہیں نا اس میں 3 سوال کر لیتے ہیں، پچھلے 2 کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلا آپ رہنے دیتے ہیں. کیونکہ مجھے میں جواب چاہتا نہیں ہوں ہوتا. نہیں ایک ہی بات ہے، آپ کی بات نہیں، میں اپنے تمام سوال نہیں لے ٹوک دیا کروں گا. مجھے صرف یہ بتائیں، انہوں نے جو پورا سوال کیا میری یادداشت کمزور ہے، وہ پورا کیا تھا ان کا سوال کو بتائیں. میں سے میری بات سنیں نا، مجھے صرف اس بات کے اوپر شرمندگی ہے کہ میں ایک ایسے نظام کے دائی سے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں جو لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کی سینٹیٹی کا احترام بھی نہیں کرتا اور ان کی پرائیویٹ پراپرٹی کو آرم ریزسٹنس کے ذریعے برسر اقتدار آ کر اس پہ قبضہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے. سر دس از ویری شیمفل فار سوشلزم. اگر آپ نے یہ سمجھا تو پھر ٹھیک ہے. جی مجھے اگر آپ کو یہی سمجھ آئی ہے میری باتوں سے جو میں نے بتائی ہے، مجھے اس کی آپ کلیئرٹی دے دیں کہ آپ نعمان خواجہ صاحب کے پرائیویٹ اسکول کے اوپر آپ نے کہا ہم قبضہ کریں گے، آپ نے کہا ہم قبضہ کریں گے، بھٹو نے بھی یہ کیا، ہم قبضہ کریں گے. سوشلسٹ میں نے سوشلسٹ کا کہا ہے، پھر آپ کون ہیں؟ تو بھائی جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ قبضہ کریں گے. اچھا یعنی بغاوت کر دیں، بغاوت کیوں نہ کریں، وہ جب ان کو لوٹنا جائز ہے، زندہ باد، ان کو لوٹنا جائز ہے کہ آپ ان کی چھٹیوں کی تنخواہیں جو ہے وہ کھا جائیں، آپ جو ہے ان کی سنڈے کی تنخواہ کھا جائیں، آپ ان کی کیا کہتے ہیں سیٹرڈے کی تنخواہ کھا جائیں، وہ جائز ہے. 1 منٹ، آپ ان کے جو 10 دن رکھے ہوتے ہیں وہ تنخواہ کھا جائیں، آپ ان کی جو چھٹیوں کی تنخواہ کھا جائیں 3 ماہ کی چھٹیوں کی، اور آپ یہ کوئی بھی یہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. اسی کوئی حمایت نہیں کر رہا. آپ سید بابر علی کی جو پیکیجز فیکٹری ہے، آپ اس کے ورکرز کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی جا کر ایڈمنسٹریشن آفس کے پر قبضہ کر لو، ان کی تجوریاں توڑ دو. سر ہاؤ چائلڈش اٹ از. پھر سے بات کریں، میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہم ان کو فالو کریں گے. کن کو؟ میں نے جو بغاوت کریں گے. واہ، جو میں نے کہا ہے نا، میری ذمہ داری وہاں تک تھی. جب عوام، میں نے کہا تھا کہ میں بار بار ایک ہی بات دہرانے پر مجبور کیا جا رہا ہوں کہ جب عوام بھوک سے، بے روزگاری سے، لا علاجی سے اور ایون ریاست کی طرف سے کیے گئے وعدوں سے تنگ آ کر کے ان کو ریاست پورا نہیں کر رہی، اگر ریاست پورا نہیں کر رہی، وہ بے روزگار ہیں تو ان کو بے روزگاری الاؤنس نہیں مل رہا، اگر وہ بے روزگار ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا. روزگار دینا بھی ریاست نے وعدہ کیا ہوتا ہے.
और उसी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बिना पर रियासत ने गन्ने खरीदने का और तोपे खरीदने का और टैंक खरीदने का हक लिया होता है अवाम से कि टैंक तोपे आप नहीं रख सकते, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और हिफाजत किस तरह करेंगे? आपकी जान की करेंगे, आपकी माल की करेंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको सेहत देंगे, आपको तालीम देंगे। जब रियासत ये कुछ नहीं कर रही, मेरी बात आप मुझे भी फिनिश कर लेने देना, जब रियासत ये सारा कुछ करने में नाकाम हो जाती है या वहां पर धोखाबाजी कर रही है और उस पर हम अगर अवाम जो है, गरीब अवाम की तरफ से बोल रहा हूँ बतौर सोशलिस्ट नहीं, जब उस पर कब्जा करें कि तुम्हारी रियासत जो है वो हमारा खून चूस रही है, तो ये ज्यादती हो जाएगी। ये कह रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक फैक्ट्री वर्कर को तरगीब दे रहे हैं कि उस फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर पर और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, और जिस बंदे को फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का अलिफ बे का नहीं पता, वो उसकी सारी मेहनत जो है वो इस तरह तो क्या। हाँ ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, उसका हमने बेशुमार दफा जवाब दिया हुआ है फेसबुक पर भी। बेहतर होता कि आप वहां से पढ़ लेते या फिर कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जब ये हुस्नी मुबारक को उल्टाया गया था मिस्र में, तहरीर स्क्वायर में, काफी सारे लोग, लाखों की तादाद में जो है वो लोग जमा थे, तो हमने देखा था कि वो लोग जब जमा होते हैं, हम एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है जिससे आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, एक हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या जिसको कई दफा गलत तरफ जाती है तो आप हजूम की नफ्सियात कह देते हैं या कुछ भी कह, उनमें फर्क होता है कि एक जो यूनिवर्सल जो स्पिरिट होती है या इंसानों की मजमूई ताकुल उनका काम कर रहा होता है, वो और तरह से काम करता है कि अगर मैं तन्हाई में बैठकर आपसे ये बातें करता, शायद बातें कुछ और तरह की होती। जब मैं अवाम में आकर बात करूंगा तो मेरी बातें और तरह की होंगी, क्योंकि मेरे अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो एक खाना है वो खुल जाएगा, मैं उसके साथ बात करूंगा। तन्हाई में बात करने वाले लोग आप देखें, असम्बलियों में देखें, तन्हाई में बातें करते हैं, अच्छी वो किसी को पूछ रहा होगा अच्छी शराब कौन सी है, फला अड्डा कहाँ पर है, या कोई इस तरह की बातें कर रहे होंगे असम्बली वाले लोग भी। लेकिन जब कौमी असम्बली में आते हैं तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से और तरह की बातें करते हैं। ये भी आपको असम्पशन है। अच्छा, मुझे नहीं, बिल्कुल असम्बली में जो तकरीर हमें सुनाई जाती है वो कुछ और होती है, वो वही होती है जो कि अवाम के लिए होती है। मुझे ये बताएं, आपकी वजह से आपकी तो कलेक्टिव, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, छोटे सवाल छोटे जवाब, तो फिर आप छोटे सवाल करना, 2-3 सवाल ना करें। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो वहां पर तहरीर स्क्वायर में काम कर रही थी, वहां पर 4 लाख 5 लाख 10 लाख के मजमे में मोबाइल फोन जाता था और चार्ज होकर वापस आ जाता था। उसी जाहिलों के हजूम में, जिसको आप कहते हैं कि ये जाहिल हैं या बगैर तालीम के हैं, वहां पर मोबाइल फोन जाते थे और चार्ज, और कोई भी हरासमेंट का, छोटी छोटी जगहों पर हरासमेंट के केस हो रहे होते हैं इवन यूनिवर्सिटियों में, लेकिन वहां पर लाखों के मजमे में नहीं था हुआ, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो काम कर रही होती है वो और तरह से काम करती है। वहां पर इस तरह से नहीं होता, वहां पर इंसान जो है वो एकदम से नेक हो जाता है जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आता है। और अब मैं फेसबुक पर आता हूँ, एक मिनट, मैं पहले फेसबुक का जवाब दूंगा। आपने पूछा था कि फेसबुक जो है वो किस तरह से, उसके पीछे जुर्म छुपा हुआ है। जुर्म की बात मैंने इनसे कहा था कि आप फिल्म देख लें, लेकिन इस्तेसाल कैसे छुपा हुआ है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि फेसबुक या फिर ये यूट्यूब वगैरह वगैरह ये किस तरह से इस्तेसाल करते हैं। हम लाइव जा रहे हैं, ठीक है, ये किस तरह से इस्तेसाल करते हैं भाई। जहां पर हम देखते हैं कि बेशुमार आजकल जो है ना यूट्यूब पर, अगर आप पूरा जवाब मेरा सुनना चाहें तो, यूट्यूब पर जो है वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों ये सवाल पढ़ा था कि इनको जो पैसा मिलता है कि उसमें भी इस्तेसाल है, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें इस्तेसाल शामिल नहीं है, इसमें उनकी किसी किस्म की वो मतलब उनसे सरप्लस नहीं बनाई जाती। क्या कह रहे थे, क्या आपने बताया था, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता वहां पर। तो देखना यह है कि उसमें भीतर में क्या है, कहाँ से यूट्यूब जो है वो पैसे देती है, हमने ये देखना है। एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट से क्या चीज बेची जाती है, अंडरवियर, कॉन्डम्स, यानी चीज एवरीथिंग आप कह लें कि एडवर्टीजमेंट से क्या चीज बेची जाती है, हम उसको कहेंगे कमोडिटी। कमोडिटी बेची जाती है, शय बेची जाती है। शय के बनने में और शय को बेचने में हम समझते हैं कि शय के बनने में असल इस्तेसाल हो जाता है, लेकिन यूट्यूब दो तरफा इस्तेसाल कर रही होती है, शय के बनाने में भी और शय के बेचने में भी। जिन लोगों ने मतलब ये पानी को बेचना है, सिर्फ एक पानी की बोतल को बेचना है,
वो इस पानी की बोतल के भी मेरे से पैसे ले रहे हैं और इसके लेबल के भी ले रहे हैं। मुझे लेबल की जरूरत नहीं उन्होंने है, आप तक पानी पहुंचाया है, लेकिन मुझे लेबल की जरूरत नहीं थी, मुझे पानी की जरूरत थी। तो आप ना लें। लेकिन वो मतलब बात ये है कि ये लेबल के भी वो मेरे से पैसे ले रहे हैं, उसकी एक चीज अगर वो मेरे उसकी सूची के भी पैसे ले रहे हैं। दो तरफा इस्तेसाल हो रहा है अवाम का, और उस इस्तेसाल से पैसा कमा कर जो है ना वो उस यूट्यूबर को दिया जा रहा है। ठीक है सर। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने इस बात को अब तक की गुफ्तगू में कैटेगोरिकली वाज़ेह कर दिया है कि आपके पास इक़्तिदार पर कब्जा करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, आप अवाम को फॉलो करेंगे, आप इस बात के मुंतज़िर हैं कि अगले 850 साल में जब अवाम इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो सोशलिज्म के पुराने टेक्स्ट्स पढ़ें और वो जाकर अपने एक्सप्लॉयटेशंस के वो मराकज़ के ऊपर कब्जा कर लें। आपकी ये गुफ्तगू जो भी सुन रहा है, जिसके यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, वो ह्यूमन इनोवेशन है। जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं वो इस्तेसाल नहीं है। उसके अलावा आप फैक्ट्री वर्कर्स को ये तरगीब दे रहे हैं कि वो जिस जिस फैक्ट्री में काम करते हैं। सवाल है या जवाब दे रहे हैं आप? जी, मैं ये अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, आपने भी एक तवील रिटोरिक दिया है, मैं सवाल आखिर में करूँगा। वो जिस जिस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में अगर उनकी छुट्टी काटी जाती है, अगर उनको बोनस नहीं दिया जाता है, तो वो जाएं और उस फैक्ट्री के ऊपर कब्जा कर लें। मुझे ये बताएं कि उस कब्जे के दौरान अगर उस वर्कर को गोली लग जाती है और उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो आप उन यतीम बच्चों की कफालत करेंगे सिफरत वाई साहब? ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कुछ और बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ आपने लोगों को तरगीब दी है, मैं बता रहा हूँ, कहा है कि जाएं कब्जा करके। अब मेरी बारी आई थी बड़ी मुश्किल से। पहले आपने क्या कहा था कि मैंने क्या नहीं किया, सबसे पहले वो बता दें। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आपने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया कि आप इक़्तिदार पर काबिज कैसे होना आपने कहा कि अच्छा कि हम कब्जा नहीं कर सकते। मैं बार बार एक ही बात दोहरा चुका हूँ, और वो बात जो है वो सब बड़े अच्छे तरीके से समझ लें कि हम पाकिस्तान में इक़्तिदार पर कब्जे के लिए नहीं बैठे इस तरह से, जिस तरह इक़्तिदार पर कब्जा। उसके बगैर आप सोशलिज्म नाफिज कैसे करेंगे? या तो फिर छोटे छोटे सवाल करें, छोटे छोटे जवाब लें। उसके इक़्तिदार पर लंबे सवाल है तो उसका जवाब लंबा होगा। इक़्तिदार पर कब्जा किए बगैर आप सोशलिज्म नाफिज कैसे करेंगे? मैं बात जी मुझे पूरी करने दें। इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए हम नहीं है, इक़्तिदार पर कब्जा अवाम करते हैं, और तमाम बगावत के जरिए करें या जैसे भी करें, अवाम का राइट है। उनकी जाने जाएंगी उसके आप जिम्मेदार हैं? जब बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ, और जब उनकी जानें वैसे जा रही, जब जो रोज खुदकुशियां हो रही हैं, उसके कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब ये है होनी चाहिए मेरे ख्याल में। भाई साहब, आप उनके साथ निकलेंगे गोलियां खाने? बिल्कुल निकले तो होते हैं, निकले होते हैं। आप जुलूसों में जाते हैं या हम जाते हैं? मुझे तो पागल आप उठाए जाते हैं या हम उठाए जाते हैं? लगता है जुलूस, ठीक है भाई आपको लगता है आप लोगों को ये कह रहे हैं कि वो ये हमारे नसीहत मुख्तलिफ है सर, ये लड़ाई तो नहीं है ना? बिल्कुल। एक मिनट बिल्कुल नहीं है। एक्सक्यूज जी मी हाँ। भाई, आपको एक चीज पागलपन लगती है, मुझे वो चीज दुरुस्त लगती है, तो इस पर लड़ने की क्या मैं बात नहीं है? लड़ रहा हूँ, आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी इस प्रोवोकेशन के नतीजे में जो माएँ अपने बेटों से महरूम होगी, जो बीवियां अपने सुहाग से महरूम होगी, जो बच्चे अपने बापों से महरूम होंगे, उन बच्चों की कफालत आपकी सोशलिस्ट यूटोपिया करेगा। अच्छा, इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लें। इन्होंने एक बात की है, जो भी की है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। ये हिस्टोरिकली कहीं पर हुआ है या आप अजम्पशन कर रहे हैं? आपने पहले मुझ पर अजम्पशन का लिया था, मुझे इल्जाम दिया था। सोवियत यूनियन में जब इनकलाब आया है, इसमें कितने लोग मारे गए थे? मेरे ख्याल में 1 या 2 थे। कितने मारे गए थे, कोई बताएगा? इनकलाबे रूस में हजारों लोग मारे गए थे। इनकलाबे रूस, एक मिनट, जो हिस्टोरिक आप अभी कोई यहाँ पर आप सबके पास विकिपीडिया मौजूद है, देखें इनकलाबे रूस में कितने बंदे मरे थे। कोई बंदा मुझे बता दे अगर के 6 बंदों से ज्यादा मरे थे, या जो उस पर मूवी बनी थी, इवन अक्टूबर मूवी है, मूवी बनते हुए 25 बंदे मर गए थे इनकलाब को फिल्माते हुए स्टंटों में, उससे कम बंदे मरे थे इनकलाब में। अगर आप देखें क्या कहते हैं, किसी विकिपीडिया वगैरह से गूगल करें और मुझे बताएं इनकलाबे रूस में कितने बंदे मरे। हाँ, अलबत्ता जब 21 मुल्कों की फौज ने, जब इन 21 मुल्कों की फौज ने जब हमला किया था सोवियत यूनियन बन जाने के बाद, तब उस लड़ाई में और उसके नतीजे में पड़ने वाले कहत से, जो पहले भी पहली जंग जो है, पहली जो क्या कहते हैं आलमी जंग जारी थी, उनकी वजह से जो मरे थे वो अलग है। लेकिन इनकलाब में कितने मारे गए थे, अगर कोई 1 या 2 या 3 या 6 तक बंदे होंगे, 7वां बंदा मुझे नहीं पता। अच्छा, उन 6 बंदों के बच्चों की कफालत पर आपको कोई? उन्होंने कहा बिल्कुल कफालत की थी।
बनते ही सोवियत यूनियन बनते ही पहले 3 साल में उन्होंने कोई 3 करोड़ मकान बना कर दिए थे, और एक बंदे को नहीं, हर बंदे को। एक मिनट, एक भी सोवियत यूनियन क्यों जाते थे? सोवियत यूनियन भागकर सोवियत यूनियन क्यों नहीं आते? वो अलग सवाल है। पहले अलग सवाल नहीं है। सोवियत यूनियन में एक भी बंदा ऐसा नहीं था। 1990 आते आते मेरी बात सुने, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां भी हुई हैं, और यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर है ये आपके कैपिटलिज्म में क्या है? एक मिनट, कैपिटलिज्म के अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पर सीरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर इराक में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो आपके है ना। जस्टिफिकेशन है। तो जस्टिफिकेशन क्या है? मुझे ये बताएं भाई, आपने आपको पढ़ा है कि ट्रॉट्स्काइट और स्टालिनिस्टों में क्या फर्क है? आपको मुझसे सवाल कर, सवाल ही गलत है। आपकी फरोई बहसों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल ही गलत है ना कि आप फरोई बहसों में पढ़ने जो की जरूरत इंसानी हकूक की, अच्छा इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जियां हुई हैं, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ आवाज किसने उठाई है? ये तो आप सबको पता होगा। वो जब अंदर रेवोल्यूशन बिट्रेड किसने लिखी थी? वो उसके खिलाफ आवाज जो है वो 1926 से क्या 1925 से खुद लेनिन ने उठाई है पहली। उसका खत पढ़ लें। तो जब वो डेथ बेड के ऊपर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में सोशलिज्म चाहिए। एक मुल्क में जो सोशलिज्म है वो गलत है। कैसे इसका मतलब ये है कैसे चाहिए, इस पर डिबेट अगली किसी शिफ्ट में कर लेंगे। कैसे चाहिए उसके ऊपर तो हम उसी पर तो लिखते रहते हैं। कैसे आप लोगों को कहने जाओ गोलियां खाओ। भाई किसने कहा? मैंने तो कहा कि पूरे इनकलाब में 6 बंदे भी नहीं थे मरे। नहीं, आप लोगों को जब अवाम जब निकलते हैं तो उनके सामने फौज नहीं रहती, फौज उनके साथ मिल जाती है, पुलिस उनके साथ मिल जाती है। अच्छा, आप बेसिकली शहबाज गिल बन रहे हैं और आप फौज को ये प्रोवोक कर रहे हैं कि वो बगावत कर दे। शहबाज गिल ने कुछ और बात कही थी, मैंने कुछ और बात कही। फिर से सुने, एक मिनट। शहबाज गिल ने ये कहा था कि फौज के जो अफसर हैं वो बगावत कर दे अपने। हमने ये नहीं कहा। हमने कहा फौज जो है वो अवाम का साथ दे। हलफ उठाया होता है अवाम का साथ देने का, वो अपना हलफ पूरा करे बस। अच्छा, फौज जो है अपना हलफ पूरा करे और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को इक़्तिदार। मैंने ये नहीं कहा। फिर क्या करें? मैंने जो कहा मुझे बताएं। मैंने कहा पाकिस्तान की अवाम का हक है पाकिस्तान पर हुकूमत करना। किसी फौजी का, किसी जनरल का, किसी जज का या किसी भी सियासतदान का हक नहीं है ना जनाब। तो मैं तो कह रहा हूँ डेमोक्रेसी, आप बात ही नहीं सुन रहे। आप तो उस इलेक्शन में जाने को तैयार ही नहीं है। आप तो डेमोक्रेसी को परेशान कर चुके हैं। नहीं, एक कहते हैं कि मैं इलेक्शन में जाने को तैयार ही चले, नहीं। मैंने जब इनसे ये सवाल पूछा था ना कि आप डेमोक्रेसी पर यकीन करते हैं, इन्होंने कहा था मैं नहीं करता। तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं? आपके लिए गलत है। मैंने तो दावा ही नहीं किया कि मैं इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैंने कब किया? इक़्तिदार पर कब्जा किए बगैर आप सोशलिज्म कैसे नाफिज करेंगे? हमने नाफिज नहीं करना, गरीब अवाम ने करना है। गरीब अवाम ने अपने अपने घरों से निकलना है सिबगत वाइन की हिदायत की रोशनी में। नहीं, सिबगत वाइन को फॉलो करेगा, उनके पीछे जाएगा। सिबगत वाइन लाइन में सबसे आखिर में होगा। कहाँ जाए? हो सकता है गोली खाने में सबसे पीछे हो, लेकिन जुलूस की लाइन में सबसे आखिर नारे मार रहा होगा मजदूर के पीछे। वो जुलूस कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हर जगह पर जाएगा। वो भाई वो बीकन हाउस में, आप बीकन हाउस के अंदर टीचर, वो बीकन हाउस पर बार तालियां मारकर गुफ्तगू के टेम्पो को खराब मुझे बात करनी है, मुझे समझना है। प्लीज आप लोग आखिर में तालियां बजा लीजिएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ सिबगत वाई साहब ये समझा दें कि आपने कहा कि अवाम का जुलूस हर जगह जाएगा। ये बिल्कुल वैसी बात है कि खुदा हर जगह मौजूद है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपके इस अवाम भी हर जगह मौजूद है। वो कहाँ जाकर इक़्तिदार को चेंज कैसे लाएंगे सिस्टम में? वो इक़्तिदार पर कब्जा करके उस इदारों को कैसे चलाएंगे? वो फॉरेन ऑफिस को कैसे चलाएंगे? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कैसे चलाएंगे? वो फैक्ट्रियों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। आप लोगों की जैसे सोवियत यूनियन फैक्ट्री तो मजदूर चलाते हैं, सरमायादार चला रहा है। सरमायादार तो घर में बैठा होता है। अच्छा, एक मजदूर के अंदर इतनी अकल भाई वही मजदूर ही चला रहा होता है। वो ट्रेन जो है वो क्या है आपके ख्याल में जनरल मैनेजर चला रहा होता है? उसको आता है कि इंजन को कैसे कहाँ पर क्या करके कांटा बदलना। आप जनरल मैनेजर को ले ले, उसको कांटा बदलना नहीं है, शायद उसमें इतनी ताकत ही ना हो। मुझे नहीं पता कि आपकी बातें इतनी प्रोविंशियल क्यों हैं और आपकी सोच इतनी सतही हमारी इसी तरह की है। जी हाँ, बिल्कुल। अवामी है ना, ठीक है। इंडिविजुअल्स मैडनेस इज एन एक्सेप्शन, इन सोसाइटी इट इज अ रूल।
اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ اسلامی ملکوں کی، اور جتنے بھی سوشلسٹ ہوتے ہیں وہ سوشلسٹ ملکوں کی امیگریشن کے لیے اپلائی بھی نہیں کرتے. آپ لوگوں کے لیے آپ کے کارل مارکس نے لنڈن میں بیٹھ کر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لکھا. اس نے برٹش میوزیم کی ریڈنگ روم کو استعمال کیا اور اس کو سرمایہ دارانہ نظام نے ٹچ بھی نہیں کیا. ایک منٹ، یہ ساتھ ساتھ الزام لگاتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے جواب میں کیسے دوں؟ یا تو یہ ایک منٹ، یہ جتنے بھی کوشچن ہیں یہاں پر آپ لکھ دیں مجھے، میں ان سب کے جواب دے دیتا ہوں. کیونکہ اسلامی ملکوں کے آپ نے کہا نہیں چاہتے، ہمارے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے. کیونکہ اسلامی ملک کون سے، میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی اسلامی ملک نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے. کون سا اسلامی ملک؟ ایک منٹ، مسلم ممالک بے شمار، وہ تو پاکستان بھی ہے. کیا پاکستان اسلامی ملک ہے؟ کیا سعودی عرب اسلامی ملک ہے؟ دبئی اسلامی ملک ہے؟ کون سا اسلامی ملک دیکھا آپ نے؟ یہ ایک بات غلط باتیں ہم کرتے جاتے ہیں، ان کو انڈورس کرتا جاؤ. ایک سوشلسٹ ملک کے اندر رہ کر نہیں، ایک منٹ، جو میں نہیں، آپ بالکل ایک غلط باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں جو کہ ہسٹوریکلی بھی غلط ہے اور فیکچولی بھی غلط ہے. ایک منٹ، فیکٹریوں پر قبضہ کریں، ہسٹوریکلی بھی فیکچولی بھی غلط ہے. ہم ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں. وہ گالیاں کھائیں، وہ گولیاں کھائیں. ہم نے نہیں وہ کیا، ہم ان سے پیچھے چلیں گے. میں بار بار میں 50 دفعہ یہی کہوں گا، جو سوشلزم ہے وہ ایک خون آشام نظریہ ہے جو لاکھوں لوگوں کو مروانے کے بعد کروڑوں لوگوں کو مروانا چاہتا ہے. میرے لمبے دام دیکھ لیے. میں نے ان کو پہلے بتایا ہے کہ انقلاب افراد جو ان کے سرمایہ داروں کا لایا ہوا تھا، اس میں 8 دن تک گردنیں اتاری گئی تھی جاگیرداروں کی. اور کنہوں نے اتاری تھی؟ سرمایہ داروں نے اتاری تھی. اور ہمارا انقلاب، اس میں 6 بندے، میں نے کہا ہے، میں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ کے پاس ویکیپیڈیا ہے، 6 بندے بھی نہیں تھے. روس نکولا اور اس کی ساری فیملیوں کو درندوں کی طرح درندوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح. کیونکہ درندوں نے، ایک منٹ، جب زار روس نے لینن کے بھائی کو پھانسی صرف ایک سازش کی وجہ سے لگوا دیا تھا. کیا ساشا نے کسی بندے کو مارا تھا جو اس کو پھانسی دی گئی؟ آپ میں اور زار لاکھوں بندوں کو انہوں نے پھانسی بھائی صاحب، آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ لیٹ می اسپیک. میں فرق بتاتا ہوں سر جی، سر معاملہ تھوڑا ٹھنڈا کر لیں. فرق سنیں. فرق ہم نے اور تھوڑی بریک لے لیں. یہ میں فرق بتا دوں، میں یہ فرق بتا دوں، فرق بتا دوں. فرق یہ تھا ہم میں اور زار روس میں. زار روس نے لاکھوں بندوں کو پھانسیاں لگوائی تھی اور جان سے مارا ہوا تھا اور گولیاں چلوا کر مارا ہوا تھا اور اس نے مارا ہوا تھا. ہم نے اور اس میں وہی فرق ہے جو کہ ایک قاتل میں اور جج میں فرق ہوتا ہے. جج بھی ایک بندہ مارتا ہے، قاتل بھی ایک بندہ مارتا ہے. جج کے مارے ہوئے کو آپ کہیں گے کہ جج میں اور قاتل میں کیا فرق ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتا. یعنی جج بھی قاتل ہے. آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو قاتل کہہ رہے ہیں. آپ ہائی کورٹ کے جسٹس کو قاتل کہہ رہے ہیں. چلے پھر آپ سے خود ہی پوچھ لیں گے. مجھے یہ بتائیں بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی اتنی انٹالرنٹ، مجھے جتنا پوچھے نہ پوچھے آپ کو لیا تو پوچھ لیں گے. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوشلسٹ سوسائٹی جو ہے اتنی انٹالرنٹ کیوں ہوتی ہے کہ وہ برٹن رسل کی ہسٹری اور ویسٹرن فلسفی کو دشمن سمجھتی ہے، اور جس کے پاس مجھے سوال تو پورا کر لیں نا، آپ اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں. لیکن ایک سوال کیجیے، ابھی 2 سوال ہو چکے ہیں، 2 سوال ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں، 2 سوال ہو چکے ہیں. پہلے کسی ایک جملے میں 2 سوال رکھوں گا. 2 ہو چکے ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ نے کہا ہے کہ گفتگو کریں نا سر، آپ نے ایک جملے میں 2 سوال کیے ہیں، کیوں ہوتی ہے نہ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کارل مارکس لنڈن میں بیٹھ کر سرمایہ داری نظام کے خلاف لکھ سکتا ہے؟ کیا ایک کیپٹلسٹ ماسکو میں بیٹھ کر سوویت یونین کے زمانے میں سوشلزم کے خلاف لکھ سکتا تھا؟ اس کا ایک منٹ، کیونکہ کیپٹلسٹ وہاں پر تھا ہی نہیں کوئی. میں نے آپ سے سوال پوچھا. ہاں، کوئی امریکہ کا سفیر ہوگا جو کیپٹلسٹ، آپ اس کو کہہ لیں، وہ لکھ سکتا ہے، لکھتا ہوگا، وہ لکھ کر بہتر ہیں، لکھ کر بہتر ہیں وہاں سے. سرور بھائی صاحب میری بات سنیں. مجھے یہ بتائیں کہ سوویت یونین کا ایک شہری 1980 میں ماسکو کے اندر رہ کر سوشلسٹ رجیم پر تنقید کر کے آزاد زندگی بسر کر سکتا تھا؟ ہاں جی، 1980 میں کر سکتا تھا. لیکن آپ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں اس ایک مخصوص دور تھا. میں نے اس کے بعد کی کتابیں خود پڑھی ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے یہاں پر مزاح کی اور کیا کہتے ہیں طنز کی اجازت نہیں تھی اتنی، جو کہ غلط تھا. یہ میں نے باقاعدہ، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسی کتابیں سوویت یونین سے چھپی جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کرتے رہے اسٹالن کے دور میں. چاہے وہ آپ نے وہ مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ جس نے کہا تھا کہ آپ اس دور میں کیا کر رہے تھے.
जो तकरीर कर रहा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कौन था वो, बर्जनीर से पहले की बात है, कोई प्रेसिडेंट का, तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है किसने ये सवाल पूछा, सारे बैठे रहे, उन्होंने कहा मैं भी यही कर रहा था। ये तो मतलब बात में होता रहेगा। 1895 में सर 75 साल की, लेकिन आपने जो पहले कहा है ना वो गलत आपने बात की है कि सोशलिस्ट जो है वो इनटॉलरेंस नहीं है की बात की नहीं है सोशल नहीं मैं की है, लेकिन वो नहीं है इंटॉलरेंट, टॉलरेंट है। अच्छा नहीं, बात ये है कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ, मैं आपको बात करने दे रहा हूँ या नहीं? आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आप इनकी प्राइवेट मेरे प्रॉपर्टी, आप इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। आपका नजरिया जो है खून आशाम भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी की मैंने सबसे पहले जो तारीफ की थी जो हमारे नजदीक थी वो यही थी को शर्म जो आनी चाहिए दूसरे इंसानों के खून चूसकर कायम होती हो उस चीज को हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं। जो मेरा मकान है वो मेरा मकान है, मेरे रहने वाला। जो मकान मैंने किराए पर दिया हुआ वो रियासत का फर्ज है उसको किराए पर दे। अच्छा वो रियासत जो है मुझे ये हाँ, बताएं, मेरा मकान तो नहीं वो छीनेगी, अगर मेरा मकान छीनेगी तो मुझे देगी। मैं मकान के बगैर कैसे रहूंगा? हम कहते हैं कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक भी बंदा बेघर ना हो। आपके अमेरिका जो सबसे बड़ी मिसाल है, वहाँ पर बेघर लोगों की लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पर फुटपाथों पर लोग सोए हुए हम देखते हैं। हम जर्मनी में देखते हैं, हम सोशलिस्ट अमेरिका। मैं भी जाना चाहता हूँ अमेरिका में। क्यों जाना चाहते हैं? ये कैपिटलिस्ट मुल्क जो है इस वक्त पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है, कहीं पर भी सोशलिज्म नहीं है दुनिया में। नॉर्थ कोरिया में नहीं है, दुनिया में सोशलिज्म भाई वेनेजुएला में नहीं है। एक मिनट इस तरह बात कर लें या उस तरह कर लें? सोशलिज्म बतौर एक आलमी समाजी सियासी निज़ाम के मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात कर रहे हैं सरमायादारी बतौर एक आलमी समाजी सियासी निज़ाम के, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि एक एक मुल्क के अंदर है या नहीं है, ठीक है, क्यूबा में तो आपके अमेरिका से हर साल लाखों बंदे जाकर मुफ्त इलाज करा के आते हैं। जब अमेरिका से क्यूबा जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं क्यूबा जा सकता? मैं भी जा सकता। हमारा हुसैन शाह 3 साल तक एक ब्रॉन्ज मेडल है पाकिस्तान का, एक ब्रॉन्ज मेडल है ओलंपिक में बॉक्सिंग में, और वो हुसैन शाह ने 3 साल क्यूबा ने उसको मुफ्त कोचिंग फराहम की थी। और एक मिनट, और वही क्यूबा जिसने इस कोरोना में 1 नहीं 2 नहीं 4 वैक्सीनें बनाई। जब ये सब जो है ना वैक्सीन को रोक रहे थे, और वही क्यूबा जिसकी इन्होंने बात की है उसने मुफ्त में पूरी दुनिया में कोरोना के लिए अमदाद फराहम की, और वही क्यूबा जिसके अंदर कोरोना नहीं आया। जी करें बात। क्यूबा की पर कैपिटा इनकम कितनी है और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम कितनी, बताएं। मतलब आप ये है ना कि जो बात ये कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बिल गेट्स की भी उतनी है जितनी वो फुटपाथ पर सोए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि इर्तिकाज़े दौलत ना हो, इनोवेशन ना हो, हर वक्त एक करके बात, एक बात पहली बात का जवाब जो है ना, पहली बात का जवाब, आप ये चाहते हैं कि इर्तिकाज़े दौलत ना हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन आपने इनोवेशन की बात नहीं हो सकता है सड़क वाले का ज्यादा हो सकता है। आपके नजदीक एक बिल गेट्स की ज़हनी सलाहियत का फाइनेंशियल रिवॉर्ड एक सड़क पे सोने वाले सड़क छाप नशई की ज़हनी सलाहियत। मैं नशई की आपने बात नहीं आपके पास अगर आपके पास एक आर्गुमेंट का जवाब नहीं होता है तो आप उसे हंसी ठट्टे में उड़ाकर डिसिपेट करने नहीं, मैंने नशई की बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं नशई को हज़फ करता हूँ, एक्सपंज करता हूँ। मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ कि सिबगत वाइन जो कि सोशलिज्म के प्रोपोनेंट है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लानत समझते हैं, उनके नजदीक माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स की ज़हनी सलाहियत का फाइनेंशियल रिवॉर्ड एक सड़क पे सोने वाले शख्स, होमलेस पर्सन की ज़हनी सलाहियत के रिवॉर्ड के बराबर है? नहीं, मैंने कहा हो सकता है कि सड़क पर सोने वाले की ज़हनी सलाहियत, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि बेशुमार। अब मेरी पूरी बात सुन ले, अब मेरी पूरी बात, उसके मुझे वजाहत का मौका देना। सरमायादारी निज़ाम को और प्राइवेट प्रॉपर्टी के निज़ाम को, या आप कह लें ये खुली जो आज़ाद मंडी के निज़ाम को हम इसलिए लानत कह रहे हैं कि इसमें बेशुमार फातिरुल अकल बिल गेट्स की जगह पर होते हैं। बिल गेट्स का बाप को तो आप देखें कितनी प्रॉपर्टी थी उसके पास, कितनी उसके पास दौलत थी, जितना उसने फाइनेंस किया
मैं मिसाल दे रहा हूँ सर। दो नाना मिक्स करें। अच्छा, बिल गेट्स की आप बात आपको करें, mixing से माइक्रोसॉफ्ट मसला होता है। देखे जो MS DOS जो बनी थी पहली, वो माइक्रोसॉफ्ट DOS जो है वो पहले सिंपल DOS थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। उस वक्त जब अमेरिका में और कनाडा में IBM भी और दूसरे कंप्यूटर जो AMD वगैरह जो है ना वो DOS को इस्तेमाल किया करते थे, जितने भी हैं मतलब IBM थे या ये आपके नजदीक आप सर पे सोने वाले का रिवॉर्ड मेरी बात पूरी बात सुन लेना। वो DOS जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसी की मिल्कियत नहीं थी, जैसा पहिया जो है वो किसी की मिल्कियत नहीं था और किसी की मिल्कियत नहीं थी, उसको पेटेंट करा के इसने MS DOS बनाई। अब MS DOS जो करना है हर कंप्यूटर के अंदर वो एक लाजमी चीज थी, हमने खुद भी उस DOS में काम किया हुआ है कि MS DOS के बगैर काम नहीं था और बड़ी स्पीडी थी कि आप जितनी भी DOS की कमांड्स हैं, अब उस MS DOS को खरीद कर उस पर काम करना लाजम जब करार दे दिया गया, क्योंकि एक बंदे ने पेटेंट करा ली है, वो किसी भी चीज को पेटेंट करा ले, अब उसने पेटेंट करा के उससे पैसा कमाकर विंडोज 1 बनाई थी। बात तो ये कि बिल गेट्स की दौलत के पीछे एक जुर्म मौजूद है। वो एक अवामी चीज को पेटेंट कैसे करा सकता है? अब मुझे नहीं पता उसने नहीं सर, अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने भी काम किया हुआ PC DOS कहते थे, उसको PC DOS मौजूद रही थी, लेकिन उसमें इनोवेशन खत्म हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि वो फ्री थी। अच्छा दूसरी बात अब इनोवेशन की बात भी कर लेते हैं। जो मैंने जवाब देना था वो मैंने दे दिया, लोग चेक कर लेंगे उसको कि क्या हुआ था वहां पर, क्या नहीं था हुआ। खैर दूसरी बात ये, एक तो DOS थी ना जो मतलब PC जो DOS कहते हैं। एक तो DOS है ना जो कि उसको कंप्यूटर को बूट करने में मदद देती है, एक उसके बाद जो DOS की कमांडो वाला DIR वाला जो वो प्रोग्राम उसमें भी थी। वो उसने बिल गेट्स ने बनाया नहीं था, लेकिन MS DOS के नाम से उसने पेटेंट करवा लिया था। IBM का ये नहीं प्रोग्राम सर, ऐसा। चले जैसे चले बात- ये रिकॉर्ड हो गया, लेकिन इनोवेशन की बात मैं करूंगा। एक आपने स्टार्ट भी यहाँ से किया था कि सरमायादारी जो है वो आया कि हिंड्रेंस है या नहीं है, इसका मैं जवाब दूंगा इनोवेशन के रास्ते में, या कि सोशलिज्म हिंड्रेंस है, यही क्वेश्चन ना मेन तो जिस पर बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है इसका मैं जवाब दे देता हूँ, जरा आराम से देना पड़ेगा। आया कि हिंड्रेंस जो है इंसान के आगे बढ़ने में वो सरमायादारी है या सोशलिज्म है। असल क्वेश्चन ये, इसको नोट कर लीजिए। हमारी जो गुफ्तगू में से जो मैंने अखज़ किया या समझा है कि जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं, तो पहले आप जिसको मर्जी ले लें, चाहे आप निज़ामों को ले लें या इस पर मैं क्वेश्चन करूं? जी आप क्वेश्चन कर लें, लेकिन मुझे ना फिर आपको 5-10 मिनट, क्योंकि ये तो लंबा सवाल है, वरना मैं लिख कर दे दूंगा इसका जवाब। मैं उसका मुख्तसर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 1964 में सोवियत यूनियन के अंदर एक ट्रैक्टर फैक्ट्री में एक जापानियों का वफ्द आता है और वो फैक्ट्री के मैनेजर से पूछता है कि जनाब आप अभी तक ऑटोमेशन की तरफ क्यों नहीं गए? तो उसके ऊपर फैक्ट्री का मैनेजर ये जवाब देता है कि हमारी जो लोकल पार्टी है वो ये समझती है कि अगर हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो उससे ये फैक्ट्री वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, हमें उनको फारिग करना पड़ेगा। और सोशलिस्ट रजीम ये नहीं चाहती कि फैक्ट्री वर्कर बेरोजगार हो जाएं, और आज इसी वजह से सोशलिज्म जिंदा है, सॉरी सोवियत यूनियन जिंदा है और जापान मर चुका है, राइट? अच्छा इसका जवाब दे दूं पहले, जी, पहले इसका इस बात का जवाब जी, दे दूं जी। जो इन्होंने पूछी है। 1964 में इन्होंने कहा है कि सोशलिस्ट रिजीम, मैं भी उसको रिजीम कहता हूँ, उसके अंदर एक जापानी कोई माहिर गया या जो भी इन्होंने कहा वफद गया, उसने ये पूछा कि जो इन्होंने पूरा सवाल किया मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोमेशन की तरफ आप क्यों नहीं गए, और उसने कहा, उसने जिसने सोवियत यूनियन की तरफ से जवाब दिया था उसने गलत किया था, हम सोशलिस्टों के नज़दीक उसने गलत किया था। अगर ऐसा हुआ है तो उसने गलत किया, क्योंकि वो सोशलिस्ट जो ये बात कर रहा है मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ, मैं फॉलोअर हूँ मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का। जब कार्ल मार्क्स के दौर में बरतानिया में मशीनें तोड़ने की मूवमेंट चली कि ये जो नई मशीन आती है तो ये गरीब का मतलब उस पर काम करने वाले का रोजगार छीन लेती है, तो मार्क्स ने उसकी मुखालफत लिख कर की थी कि मशीनें तोड़ना जो है वो हल नहीं है, मशीन जब भी आती है ठीक है वक्ती तौर पर, ये मार्क्स के अल्फाज हैं कि वक्ती तौर पर वो रोजगार कुछ बंदों का छीन लेती है, लेकिन जब मशीन आती है तो पहले से 10 गुना 20 गुना, एक मिनट मुझे फिनिश कर लेने दे, रोजगार ज्यादा लेकर आती है। इंडिया ने भी उसी एक आप कह लें उसको सोशलिस्ट हमाकत, उसको इडियोसी कह लें, जो भी कह लें, उसके तहत एक फिल्म बनाई थी, दिलीप कुमार की फिल्म थी नया दौर, उसमें बस का और टांगे का मुकाबला करते हैं और उन्होंने दिखाया था कि टांगे वाले को जीतना चाहिए। ये जो सोशलिस्टों का ये एक
सोशलिस्ट रियलिज्म जो अदब और जो सिनेमा वगैरह पैदा किया है, इसके हम खुद खिलाफ हैं। आप हमें पढ़ते नहीं है, आइंदा से आप पढ़ेंगे। 1 मिनट आपको पता चल जाएगा, हम ऐसे बात नहीं कर रहे। मशीन 1 मिनट, हमारे गुजरांवाले में 7 कातब थे कंप्यूटर आने से पहले, और जब कंप्यूटर आया है तो उसने 7 कातबों का रोजगार खत्म कर दिया, लोग कंपोजिंग करने लग गए। आज 10,000 वहां पर कंपोजर बैठे हैं जो कंपोज कर रहे हैं। जब भी मशीन आती है वो ज्यादा रोजगार लेकर आती है। जी, हमारा ये मौक़िफ़ है। मैं इसी मौक़िफ़ को आगे लेके चलता हूँ। अब जरा थोड़ा सा आप शोर से गुरेज करें, मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू करें। हाँ भाई, शोर से आप मुझे कर रही है। नहीं, उनको कहें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जहाँ पर उलमाए कराम का दिल करता है वो मजहबी किताबों के टेक्स्ट को लिटरल करार देते हैं, हकीकी करार देते हैं, और जहाँ पर उनका दिल करता है वो उसको मेटाफॉर करार देकर निकल जाते हैं। यही काम वाई साहब आप कर रहे हैं कि जहाँ पर आपका दिल करता है वहाँ पर आप सोशलिस्ट सोवियत यूनियन की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे में लाते हैं, ठीक है, और जहाँ पर आपका दिल करता है आप कहते हैं कि हम सोशलिज्म के सोवियत यूनियन के इस फैक्ट्री मैनेजर के जवाब से इत्तफाक नहीं करते। ये मेरा राइट है या नहीं है? वैसे ऐसा करना। मुझे ये बताएं कि यू आर नॉट स्टिकिंग टू वन आइडियोलॉजी, you are changing your gears towards one socialist state to the other socialist interpretation which you deemed right, and अगर आप में और उस फैक्ट्री वर्कर के दिमाग में सोशलिज्म एक नहीं है तो जो आपका फिकाए मार्क्सिया है वो फिकाए ट्रॉट्स्किया से किस तरह से मुख्तलिफ है? भाई साहब, ये जो इनका जितना भी सवाल है ज़ाहिर रिकॉर्ड हो गया होगा, आप लोगों ने भी सुन लिया। मसला ये है कि हमारी गुफ्तगू में जगह जगह पर कहीं क्यूबा आया है, कहीं नॉर्थ कोरिया आया है, कहीं सोवियत यूनियन आया, मैं नहीं लेकर आया, अवैध साहब लेकर आए हैं, ठीक है। और जहाँ से गुफ्तगू शुरू की थी, शायद रिकॉर्ड वो नहीं हुई होगी बात, वो मैं दोहरा देता हूँ। वो हमारी ये इत्तेफाक हुआ था और मैंने ये बताया था कि हम सोशलिज्म को, मार्क्सिज्म को और कम्युनिज्म को एक समझकर बात करूंगा मैं, कि सोशलिज्म भी वही है, मार्क्सिज्म भी वही है, कम्युनिज्म भी वही है। और मैं जो डिफेंड कर रहा हूँ या जिसका मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ वो मार्क्सिज्म है, वो मार्क्सिज्म है, वो सोवियत यूनियनिज्म नहीं है, वो स्टालिनिज्म नहीं है, वो कोई भी माओइज्म नहीं है जिसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ। हाँ, सोवियत यूनियन में या चाइना में या क्यूबा में, इवन पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा इकदाम होता हुआ जो कि सोशलिज्म के मुताबिक है तो मैं कहूँगा ये भी ठीक है। मैं इसलिए तो मैं इसको बुरा कहूंगा कि ये कैपिटलिस्ट मुल्क में हुआ है। अगर स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में अगर मतलब औरतों को 1.5 साल की जो है वो लीव दी जाती है प्रेगनेंसी की, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम उसको ये तो नहीं कहते कि ये इनकलाब से दूर लेकर जा रहे हैं। एक बात बताएं कि 1 मिनट, हम हर किस्म की रिफॉर्म की हिमायत करते हैं, मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने की। हमेशा हम जब जुलूसों में होते हैं, फैक्ट्रियों के आगे होते हैं, या कभी रेलवे में, कभी PIA में, कभी किसी के हक में लिख रहे हैं या नारे लगा रहे हैं, तो हम मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, लेकिन हम रिफॉर्मिज्म की मुखालफत कर रहे हैं। 1 मिनट, पूरी जो इस्लाहात है ना जो कि आपको पढ़ना चाहिए हमें, वो ये कि हम रिफॉर्मिज्म की मुखालफत करते हैं, रिफॉर्म की नहीं। उसी तरह से जहाँ पर आप रिफॉर्मेशन की हामी है, नहीं, मैंने कहा है कि हम रिफॉर्मिज्म की मुखालफत करते हैं, लेकिन हम रिफॉर्म्स की हिमायत करेंगे। मुझे एक बात बताएं कि 1818 में कार्ल मार्क्स ट्रियर जर्मनी में पैदा होता है और 1883 में उसकी लंदन में डेथ होती है। तो कार्ल मार्क्स की पैदाइश से लेकर अब तक तकरीबन 205 साल हो गए, 4-5 साल, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आज तक अगर मार्क्सिज्म की फिलॉसफी में इतना पोटेंशियल है एक आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए, तो मार्क्सिज्म में ऐसा क्या इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि वो आज तक अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका? अच्छा, ये एक मतलब ना फिर ट्रिकी सवाल के नहीं, क्यों नहीं कर सका, क्यों का जो जवाब है 1 मिनट, उलमा भी यही कहते हैं कि इस्लाम में कोई मसला नहीं है, इस्लामी मसला ये है कि ये जो नहीं, ये नहीं मैंने कहा, बात और है, बात और है। ये मैं कह रहा हूँ कि आप 2 सवाल इकट्ठे करते हैं, उनमें से मैं मानता ही नहीं हूँ। एक सवाल किया है, अंदर में क्यों का लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्यों का मतलब क्या होता है? क्यों अचीव नहीं कर सकते? क्यों का मतलब होता है कि होता तो ऐसे ही है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं हुआ। मैं मानता ही नहीं हूँ कि ऐसे हुआ है। कैसे?
जब वो ऐसे हुआ ही नहीं है तो फिर क्यों जब वो अगला सवाल हो गया ना कि पहले 1 मिनट आप मुझसे पूछेंगे आप ये मानते हैं, मैं कहूँ अगर हाँ तो आप कहते हैं क्यों? मैंने कहता हूँ मैं मानते नहीं, फिर आप क्यों कैसे पूछेंगे? 1 मिनट नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं जवाब देता हूँ इसका। मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि हम नहीं मानते। अचीव क्यों नहीं किया? जगह जगह पर अचीवमेंट्स हुई हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये अचीवमेंट नहीं है कार्ल मार्क्स की। आप तो लोगों को मरने पे उकसा रहे हैं। नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे साथ लोग जो आए हैं इतनी दूर से सारी बैठे यूटोपिया हैं। का अगर शिकार है। चले यूटोपिया का शिकार है ये पाकिस्तान पूरे का पूरा जो एक दफा यूटोपिया का शिकार हुआ है 70 में। अब ये कहेंगे कि 68 69 में जब पूरे का पूरा पाकिस्तान यूटोपिया का शिकार था। 1 मिनट, जो सोवियत यूनियन जो है यूटोपिया का शिकार था, चाइना। 1 मिनट, आपने पूछा, एक सेकंड आप मुझे जवाब दे प्लीज 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 मुझे जवाब दे लेने पूरा। आप जवाब नहीं देने दे रहे। आपने 1964 के सोवियत यूनियन की बात की है कि वहां पर वो आगे नहीं था जा सकता वगैरह, आपने ये कहा है। भाई 1990 के बाद सोवियत यूनियन ने क्या तरक्की की है मुझे बताया ना, कैपिटलिज्म अचीव करके उसने क्या तरक्की की है ये आप मुझे बताएंगे। और 1917 से लेकर 1990 तक जो उसने अचीवमेंट्स की हैं वो मैं बताता हूँ। 64 तक उसने क्या अचीवमेंट की थी वो मैं आपको बताता हूँ कि 59 में वो खला में पहुंच चुका था। और 1917 में सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन आप कह लें या रूस कह लें, वो कहां पर था? कि उससे पहले एक ऐसा मुल्क था जो आज के पाकिस्तान से भी पीछे था। आज पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने इस बात का भी जवाब मैं दे चुका हूँ कि जहां पर वो ठीक है वहां पर उसको मैं ठीक कहूंगा। आप मुझे बताएंगे कि 1990 से लेकर आज 2023 आ चुका है, इसमें सोवियत यूनियन ने क्या, मेरे मुंह से वो कोई और बात निकली, उसने क्या उखाड़ लिया? चले बताएं क्या किया उसने? इसी बात का आप मुझे जवाब। 1991 के मॉस्को को देख लीजिए और 2023 के मॉस्को को देख लीजिए, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें जमीन आसमान का फर्क। क्या क्या बनाया है? 1 मिनट 1900 मैं मॉस्को में कहाँ जाकर देखूं? सर मुझे 20 मिनट टोके, मैं आपकी बात को बीच में नहीं टोकूंगा, आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे, ठीक है भाई साहब? मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपसे ये पूछा नहीं, इसी सवाल पर नहीं वैसी में रहूंगा कि मैंने आपसे ये पूछा जिसके जवाब में आपने ये सोवियत यूनियन की अचीवमेंट्स का जिक्र किया। जब आपका दिल करता है आपको अच्छा लगता है, जब आपको दिल करता है आपको बुरा लगता है। मुझे ये बताइएगा कि कार्ल मार्क्स की पैदाइश से लेकर 2023 तक 205 सालों में सोशलिस्ट से या सोशलिस्ट निज़ाम से ऐसी क्या थ्योरेटिकल इनहेरेंट मिस्टेक हुई है कि वो अभी भी लोगों के मुल्कों के ऊपर अपना निजाम नाफिज करके अपनी मंशा हासिल नहीं कर सका? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं जो है ना वो जवाब को पिछला जो जवाब है उसके साथ नथी करके ही आपको दूंगा। उसके बगैर मैं नहीं दे सकता। वो मेरा जवाब ये चल रहा था कि सोवियत यूनियन जब 1917 में बना है तो एक इंतहाई किस्म का मतलब एक पिछड़ा हुआ मुल्क था जहाँ पर मजदूर भी इतने नहीं थे, कारखाने नहीं थे, किसान थे वहां पर उस वक्त। और पहले 4-5 साल मंसूबों के बाद वो दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर आ गया। उसके चंद साल के बाद, उससे तकरीबन मेरे ख्याल में 15 साल के बाद वो टॉप पर पहुंच गया जहां पर वो खला में पहुंच जाता है और पूरी दुनिया जो उसके 9 साल बाद खला में पहुंचती है। ये फर्क था कि और अगर आपने चाइना को लें तो चाइना मेरे ख्याल में जो उसका जीडीपी रेट देखे तो 60s में दुनिया में सबसे ज्यादा था। 1 मिनट, पर पूरी बात आप मुझे आप क्यों टोक रहे हैं? आप सर जरा प्लीज अंदर थोड़ा सा इंटरफेरेंस आपको करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपको वो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सोवियत यूनियन ने क्या अचीवमेंट की थी, क्या अचीवमेंट थी और उसका नाम कहां पर था हिस्ट्री में और दुनिया के मुल्कों में सोवियत यूनियन की पोजीशन क्या थी, सबमरीन्स में क्या थी, उसकी जो नेवी में क्या थी, सोवियत यूनियन की एयरफोर्स में क्या थी। 1 मिनट, दुनिया में सबसे ज्यादा जो गंदम पैदा करने वाला मुल्क था वो सोवियत यूनियन था। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने की सलाहियत जो है वो सोवियत यूनियन के पास थी। पूरे सोवियत यूनियन में, मैं ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ। ह्यूमन राइट्स ये है कि लोग खुदकुशी कर रहे हो और चंद बंदों को बोलने की इजाजत हो। सोवियत यूनियन में एक बंदा आप बताएं जो 1990 तक बेरोजगार था। सोवियत यूनियन में एक मेडिकल स्टोर बताएं जहां से आपको ट्रैंकुलाइजर मिल सकती थी। सोवियत यूनियन में आप बताएं कि एक पागलखाना मौजूद था। सोवियत यूनियन में बताएं मुझे। 1 मिनट नहीं था, 1 मिनट आपके पास विकिपीडिया वगैरह उन पर सर्च करें। अच्छा, सोवियत यूनियन में आप बताएं कि 1917 से लेकर 1990 तक एक भी सीरियल किलर मौजूद था।
रखूंगा, आप कोशिश करें कि अपने और लेकिन नहीं पूरा नहीं ना हुआ ठीक है। तो पूरा करने से फिर नहीं हुआ नहीं ये अब मैं इसको छोड़कर पूरी बात करता हूँ ना कि सोवियत के आपकी सोवियत बात यूनियन को से छोड़ देते एक हैं जवाब- कि सोशलिस्टों ने अचीवमेंट्स की थी ठीक है। आपको देखनी चाहिए ठीक है, वो और सस्टेन आप चाइना को भी ले लें वो सस्टेन क्यों नहीं कर सकते? सस्टेन किसको सोशलिस्ट रियासत सस्टेन क्यों नहीं कर सकते? हाँ सोवियत यूनियन ने सस्टेन क्यों नहीं किया ये इनका सवाल है सोवियत यूनियन ने सस्टेन क्यों नहीं किया इसका जवाब मेरे ख्याल में डॉक्टर लाल खान भी दे चुके हैं बड़ा मशहूर हुआ था पिछले दिनों जब उनकी वफात हुई है तो उनका भी चल रहा था कि इस बात को सोवियत यूनियन टूट जाएगा ये कि सोवियत यूनियन टूट जाएगा ये 1990 से पहले किसी वेस्टर्न यूनियन का वेस्टर्न सॉरी क्या कहते हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का किसी वेस्टर्न कंट्री की किसी यूनिवर्सिटी का ये थीसिस नहीं था किसी यूनिवर्सिटी में ये थीसिस नहीं था किया गया और सबसे ज्यादा हैरान सोवियत यूनियन के टूटने पर खुद वेस्ट वाले हुए थे अमेरिका और यूरोप वाले बताता हूँ ना क्यों हुए थे हैरान उनका अलाई था दोनों ने मिलकर जंग लड़ी थी स्टालिन ने और अमेरिका ने आप खुद आपको पता होगा आपको डायलेक्टिक्स पढ़नी चाहिए कि दोनों चीजें एक वक्त होती हैं किस तरह होती है एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं कि आपने सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं ना कि उसमें सर आप अगले बंदे को बोलने का टूटने तो मैंने तो दिया था पर बात सुन ही नहीं रहे आपने टूटा क्यों टूटा था और जो टूटा था एक मिनट सबसे पहला जो ऐलान किया था ये लेनिन ने किया था 1924 में कि अगर ये हमारा जर्मनी में खास तौर पर और दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में अगर सोशलिज्म नहीं आता तो ये इनकलाब 2-4 साल भी नहीं चलेगा ये लेनिन ने कहा था और मौजूद है हिस्ट्री पर एक मिनट ये मौजूद है कि ये 2-4 साल से ज्यादा नहीं चल सकता और जर्मनी का इनकलाब लाने के लिए अगर हमें सोवियत यूनियन के इनकलाब की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम देने को तैयार हैं क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल मुल्क है और ये एक पिछड़ा हुआ एक पीछे का मुल्क है अच्छा और उसके बाद किसने लिखा उसके बाद ट्रॉट्स्की ने लिखा उसके बाद ट्रॉट्स्की ने मेरे ख्याल में 1936 में लिखा 36 में लिखा उसने कि सोवियत यूनियन जो है वो ज्यादा देर टिक नहीं सकेगा ये तबाह हो जाएगा ये टूट जाएगा उसके बाद कॉमरेड टेड ग्रांट्स ने लिखा उसके बाद एलन वुड लिखा भाई साहब आप बेसिकली और हमने वजूहत भी लिखी है ठीक है आप बेसिकली आपकी जो थ्योरी है और आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपस में लगा नहीं खाता है आपकी थ्योरी ये है कि आप ट्रॉट्स्काइस्ट हैं राइट आप लियोन ट्रॉट्स्की को उसकी जो सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन है उससे इत्तेफाक करते हैं लेकिन अभी आपने यहाँ सबके सामने कहा कि 1917 में जब सोशलिस्ट इनकलाब आ गया तो पहले 4 जो सेंट्रलाइज्ड प्लान थे ठीक है जो 5-5 साल के प्लान थे उनके नतीजे में आपके पास इतनी गंदम पैदा हो गई इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई अच्छा थ्योरी आपकी ये है कि लियोन ट्रॉट्स्की की जो डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म है वो दुरुस्त है और दलील आपकी ये है कि जो सेंट्रलाइज्ड प्लान्स थे उनसे रेवोल्यूशन आ गया सर मैं जवाब दे दूं जी प्लीज हाँ यहाँ पर ये है कि ये कंफ्यूज करने की जो ना मतलब आप कोशिश कर रहे हैं दो चीजों को हमारा जो सोशलिस्टों का और ये सिर्फ ट्रॉट्स्काइट नहीं इवन स्टालिनिस्ट भी और जितने भी सोशलिस्ट हैं उनकी एक बात पर हम सभी मुत्तफिक हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं पूछ ले उनसे एक बात पर हम सभी मुत्तफिक हैं या नहीं है ये भी मजदूर किसान पार्टी से बैठे हुए इनसे पूछ लीजिए एक बात पर हम सभी मुत्तफिक हैं कि मनसूबा बंद मईशत होनी चाहिए आजाद नहीं ये मुत्तफिक है या नहीं है ये तो आप इसको तो ये नहीं कहता था क्या वो तो कहता था नहीं मनसूबा बंद मईशत जी बताइए इनको कोई भी बताओ मुझे ये बताइए कि क्या लियोन ट्रॉट्स्की सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का हामी था या नहीं मैं जो बता रहा हूँ ना जी, वो उसी जी, तरह से है जी, वो रिकॉर्ड हो रहा है जी, और ये हिस्ट्री में जी, है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रॉट्स्काइट हूँ या स्टालिनिस्ट हूँ मंसूबा बंद मईशत जिसको हम कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी उसके हामी होते हैं सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का हामी है लियोन ट्रॉट्स्की मंसूबा बंद मईशत का हामी मैं है। आपसे क्या पूछ रहा हूँ क्या मैं जो बता रहा हूँ ना वही है सेंट्रल प्लान का हामी है कि नहीं भाई आपके जो टर्मिनोलॉजी है मैं अपनी सेंट्रल प्लान क्या सेंट्रल प्लान बता रहे हैं सेंट्रल प्लान ये है कि मॉस्को डिसाइड करेगा कि वोल्गोग्राड में अगले साल कितनी घड़ियां बनेंगी सेंट्रल प्लान ये है कि मॉस्को डिसाइड करेगा कि सेंट पीटर्सबर्ग में अगले साल गंदम के कितने थैले प्रोड्यूस किए जाएंगे ये सेंट्रल इकोनॉमी है सिद्दत भाई साहब नहीं ये मंसूबा बंद है ना अगर तो ये ठीक है कि आया कि एक मिनट ये हाँ। ठीक कह रहे हैं ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा है कि
मॉस्को में एक बैठा हुआ जी हाँ। एक शख्स जी हाँ। है जिसको जो इल्हाम होता है या वो एब्स्ट्रैक्टली वो सोच लेता या है वो- चले भाई अगले साल इतनी बन जाए Exactly. तो इसके तमाम सोशलिस्ट जो है ना मुखालिफ है। अच्छा, मुखालिफ है। अगर ऐसा हो आपको अगर- पूरा पूरी बात तारीफ सुनो, कर रहे हैं। पूरी बात सुनो भाई पूरा साहब अभी तो आप इस सेंट्रल प्लान की तारीफें कर रहे हैं कि आप पहले 5 सालों के जो पहले 4 प्लान है उन्होंने सोवियत यूनियन की हालत बदल दी। मेरे ख्याल में समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था और मैं क्या कह सर, रहा मैं नहीं समझा ना जिससे आप गुफ्तगू तो कर फिर रहे आप सुनेंगे तो समझेंगे। जी जी हाँ वो ये है कि अगर एक बंदे को कोई वहम होते हैं इल्हाम जो भी आप कह लें वहम कहूँगा इल्हाम तो नहीं आप कहेंगे उसको वहम कह लें या उसको कोई वजदान होता है या कोई खबर उसको कोई मिलती है कोई चिड़िया से खबर मिलती है इतनी गड़ियाँ बना लो इतने जूते बना लो इतनी पैंटें बना लो तो उसके हम खिलाफ है सभी आप सिरे से के खिलाफ मैं जो बता रहा हूँ ना वही है। लेकिन मुल्क में कितने जूतों की जरूरत है कितनी गड़ियों की जरूरत है कितने कारों की जरूरत है या कितने टैंकों की जरूरत है ये प्लानिंग के साथ होगा इसके हम हक में हैं सभी के सभी। बच्चों वाली और बात है, वैसे- नहीं हम हक में हैं तो बच्चों की कैसे बात है। सोशलिस्ट की जो दिमागी उम्र होती है वो 12 साल से ज्यादा नहीं होती है। पहले मेरी राय है, मेरी राय है। मेरी ये भी 11 साल है। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये कहा कि हम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के हक में नहीं है, राइट? मैंने जो कहा है ना वो रिकॉर्ड हो चुका Exactly. है इसको छोड़ने आगे चले मैंने जो कहा वो रिकॉर्ड हो चुका है। मैंने इसी नुक्ते पर एम्फसाइज करना है कि आप लियोन ट्रॉट्स्की की डिसेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी को तायद भी करते हैं और आप सेंट्रल प्लान की भी तायद करते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि हम इकोनॉमी कैसे रन मैंने आपको करेंगे। पहले- ये जो पानी की बोतल है ये अगर 50 रुपए की है सिफरत भाई साहब तो ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं कि ये 50 रुपए की क्यों है। इस प्राइस के पीछे एम्बेडेड लेबर होती है जिसको सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कंसिडर नहीं कर सकती है। और आप कि सोशलिज्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस का आगाज करता है और वो वाइबल नहीं होता है तो वो उसे बंद कर सकता है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स की तरह एक जो स्टेट बिजनेस का आगाज करती है और वो वाइबल नहीं होती है तो उसकी अना का मसला हो जाती है और वो घाटे में चली जाती है। इस वजह से सोशलिज्म जो होता है वो स्टेगनेंट हो जाता है। भाई साहब प्लीज एड्रेस दिस अच्छा इशू। अच्छा करते हैं ना बात जी। ठीक है बात हो तो रही है। मतलब ये नतीजे जो है ना ये जिस तरह मैं वो कह रहा था ना एक बंदे को ख्वाब में आ जाती है शायद आपको भी जो है ना नतीजे आप पर को नाज़िल हो रहे हैं कहीं से कि स्टेगनेंट हो जाती है। भाई ना चाइना की मैशत स्टेगनेंट हुई है। चाइना को आप सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं? मैं 60s की बात कर रहा हूँ। अभी वैसे क्या है? मैं 60s की बात कर रहा हूँ अभी सोशलिस्ट मैशत नहीं है वहाँ सोशलिस्ट नहीं है अभी अभी तो उससे तो सर। जाना लेकिन उसकी ग्रोथ रेट आप देखें ना कोई विकीपीडिया पर देखकर इन्हें बताए कि 60s में चाइना का ग्रोथ रेट क्या था जब वो सोशलिज्म की मनसूबाबंद मैशत पर पूरी तरह से कार्बन था तब क्या था और 90 के बाद क्या हुआ है ये भी ये बताएं 99 के बाद क्या है। बहुत ज्यादा था। अच्छा। आप पढ़ के देख लें वेरी गुड। कि 99 के बाद क्या है उसका ग्रोथ रेट और 60s में क्या है ये आप देख लें आपको पता चल जाएगा कि स्टेगनेंट थी या नहीं थी। आप पढ़ सकते हैं उसको। दूसरी बात सऊदी यूनियन मैंने बताया कि मनसूबाबंद मैशत के साथ चलकर उसने किस तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा गंदम पैदा की वगैरह 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 छोड़ देते। हाँ अब आ जाते आप ही के सरमायादार 1932 में अमेरिका को क्या हुआ था ये बताएं मुझे। 29 30 31 32 मैंने एक फिल्म देखी थी सी बिस्किट घोड़े वाली थी वो फिल्म वो रेस के घोड़े वाली तो उसमें लाइनें लगी थी राशन लेने के लिए लोगों की और उनको ना रोजगार था ना उनके पास पैसे थे कोई चीज खरीदने के लिए और वो बोरियों में लेकर जाते थे। इस वजह से और अब क्या हो रहा है गलत है। बिल्कुल ये नहीं अगर बहरान जो है ये गलत नहीं है तो क्या गलत है फिर ये मिसमैनेजमेंट है। बहरान है और ये बहरान जो है ना ये हम कहते हैं और बार बार कहते हैं कि ये ओवर प्रोडक्शन के बहरान ये ओवर प्रोडक्शन के बहरान को आप पढ़े। और दूसरी बात जो आप कह एक मिनट सॉरी नहीं मेरी बात एक मैं सरमायादार अपनी डिसाइड बात करेगा कि ओवर प्रोडक्शन करनी है। मैं अपनी बात जो है ना वहीं पर रखूंगा एक मिनट। वो बात ये है कि आप अभी कह रहे थे कि आपकी बातें आपको लग रही है मेरी बातों में बात जगह पर कि वो जो है ना वो कंट्राडिक्टरी है हर जगह पर। लेकिन मेरी जो कंट्राडिक्शन है ना वो आप कह लें कि हम उस कंट्राडिक्शन को यूनिटी ऑफ अपोजिट्स कहते हैं कि एक ही चीज को ब्लैक और व्हाइट हम नहीं बताते। हम देखते हैं कि चीज के अंदर क्या है। चीज के अंदर कंट्राडिक्शन मौजूद है
आपके निजाम के अंदर कंट्राडिक्शन मौजूद है, तो मेरी बात तो नहीं, मेरी बात नहीं कंप्लीट। आपके निजाम ही कंट्राडिक्टरी है, तो मेरी बातें क्यों कंट्राडिक्टरी हो? मुझे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मुझे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या 70% टॉक टाइम सिद्दत साहब के पास नहीं है? मेरे पास सवाल आप कर रहे हैं, हम गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दत साहब, आप अपने सवाल को, अपने जवाब को प्लीज प्रिसाइज रखा करें। आप सवाल कर लें, आप सवाल कर रहे आप सवाल कर लें। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं एग्जैक्टली नहीं, मैं गुफ्तगू जो होती है उसमें दोनों बोलते हैं। मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, डोमिनेंट पोजीशन आपके पास है ना, तो उनको भी मौके दे। वो सवाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन जो है उसकी वजह वो जो कैपिटलिज्म की नाकामी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैपिटलिज्म की मिसमैनेजमेंट थी। ठीक है भाई साहब, मैंने ओवर प्रोटेक्शन कहा है। ठीक है, मैं उसे अब मुझे ये बताएं, मुझे ये आज का जो आज के बयान है, मैं अच्छा, एक सेकंड, मैंने एक बात नोट की है कि आप जब बात कंप्लीट करते हैं ना तो सिद्धू साहब बोलते हैं, लेकिन आप उनको बार बार काटते हैं, तब मसला क्योंकि वो चुप नहीं करते हैं। आप काटे ना, अब वो उनकी चुप बात नहीं करते हैं। पूरी होगी। वो 10 मिनट बोलते रहेंगे। हमारे पास वक्त की कैद नहीं है, ओके, आप आराम से। मैं अगला मैं इस असर्शन के साथ कि आप अपने जवाब को 2 मिनट तक समेटने की कोशिश करें, मैं आपको नहीं टोकूंगा। चलो 2 मिनट को किसके पास स्टॉप वॉच है तो इसका मतलब ये था कि एक रीजनेबल टाइम। ठीक है सिब्बत साहब, क्या एक मुसलमान सोशलिस्ट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? गई भैंस पानी में। यानी कि आप ये कह रहे हैं हमारे हैं ना, वो पागल है। वो नहीं, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, वो आप मेरी बात सुने। वो एक बंदा वो पठान से पूछता है कि वो वुजू के बगैर नमाज कहता है, हमने पढ़ के देखा, हो जाता है। ये ठट्ठे में उड़ाने वाला सवाल। चले मैं उसको मैं वैसे बताता हूँ, मैं दोबारा मैं इनका जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। एक चीज याद रखें कि सोशलिस्ट तय करेंगे कौन सोशलिस्ट है, या कैपिटलिस्ट तय करेंगे कि कौन सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मैंने आपको बोलने की इजाजत दी है। नहीं ठीक है, मैंने कोई बात। सवाल की इजाजत दी है। मुख्तसर सवाल कर सकते मैं हैं। नहीं, मैं जब हम ये खत्म करेंगे तो मैं आपके चले ठीक है, एक मिनट प्लीज अभी बीच में ना बोले। मैं रिपीट कर रहा हूँ सिब्बत साहब, क्या एक मुसलमान सोशलिस्ट? हाँ मैं इसका एक्सक्यूज मी और ये जो बार बार ठट्ठा हंसी मजाक या तालियां, मेरे ख्याल में ये भी Exactly. इस तरह से ना क्या चलने दे, चलने दे, बात चलने दे, बात चलने दे। अच्छा, मैं मुझे ना सवाल पूछेगा सर जी मुझे सवाल पूछेगा, मैं जवाब देने लगा। क्या सुन लेना भाई, मैं अब मेरी बारी है, मुझे जवाब दे लेने प्लीज। क्या एक मुसलमान सोशलिस्ट हो सकता है? मैंने इन्हें जवाब दिया क्यों नहीं हो सकता। एक बात, हाँ, हम जो काम करते हैं, हमारा जो नारा था, जो मैंने पहले भी बताया, वो ये था कि 1944 से यही चलता आ रहा है कि तमाम दुनिया के मेहनत कशो एक हो जाओ। उसमें कहीं भी नहीं है कि मेहनत कश जो है वो मुसलमान होंगे, यहूदी होंगे, क्रिश्चियन होंगे, मसीही होंगे, वो हिंदू होंगे या सिख होंगे। आज हम जहाँ पर काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मसीही भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और मुस्लिम में सुन्नी भी हैं, भाभी भी हैं, शिया भी हैं, और बड़ी अच्छी बात है, और इवन अथीस्ट भी हैं। हमारे साथ हर तरह के लोग मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में हमारे साथ हिंदू भी हैं, हमारे साथ सिख भी हैं, हमारे साथ क्रिश्चियन भी हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी हैं, और हमारे साथ अथीस्ट भी। एक मिनट पूरी बात कर लेंगे प्लीज। अथीस्ट भी हैं, और भी मज़हब होंगे जिनको मैं नहीं जानता, बुद्धिस्ट भी होंगे और ज़रतश्ती भी होंगे। किसी भी मजहब के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने हम मजहब का किसी दूसरे मजहब के बंदे का इस्तेसाल करे, और इस्तेसाल करने वाला खा किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता है, वो हमारा कॉमरेड है। मेरा अगर वो हमारे साथ खड़ा है तो। इसी डिस्कशन की रोशनी में आपने कहा कि एक मुसलमान सोशलिस्ट हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपके ग्लास में सूखा पानी है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इस्लाम जो होता है वो लोगों की आबरू और आप लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं कि इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं? लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, इस्लाम के ऊपर आप वो बात कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट इस्लाम आपका मौजूद इंटरफेयर इन माय नहीं, इस्लाम मौजूद ये ज़ैली मौज़ूआत होते हैं, जिनमें कोई चीज आ जाती है उसके बाद की जाती है। लेकिन बेहतर ये कि मजहब के मतलब मामले नहीं में है ना, मैं उन लोगों को आप और भी तो नहीं बैठे हुए ना। ठीक है, मजहब पर जो ना बात नहीं बात करी करना, अगर लोग नहीं चाहते तो मजहब
नंबर 5 आप लोगों को मुहालते का शिकार कर रहे हैं। इस्लाम जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेंटिटी देता है और सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने की बात करता है। वो एक मुसलमान सोशलिस्ट कैसे हो सकता है? आपने इनके सवाल का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, एक मिनट, जिन्होंने सवाल नहीं सुना वो सुन ले, मेरे से सुन ले या इनसे सुन ले। इन्होंने कहा है कि इस्लाम जो है वो हर शख्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी का दूसरे का इस्तेसाल करने का हक देता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब इस्तेसाल नहीं होता। मैंने शुरू से यही बता रहा हूँ कि हमारे नजदीक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती वो है जहाँ पर इस्तेसाल हो। इसका मतलब ये है अगर किसी ने अपनी छोटी सी दुकान डाली है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आप एक बंदा, एक मुसलमान जो है, जो एक बड़े बिजनेस का मालिक है, जिसने दुकानें किराए पर दी हुई हैं, ठीक है, आपके नजदीक वो उसकी जरूरत से जायद है, लेकिन उसका जो माल है उसकी सेंटिटी को तहफ्फुज मजहब देता है और आप उसके माल को हथियाना चाहते हैं। अगर इस तरह से मजहब उसको तहफ्फुज देता है देता है हदीस है, पहले नंबर पर देता है जान माल आबरू। अगर कोई दुनिया का कोई मजहब बाज इंसानों को ये हक देता है कि वो दूसरों को लूट कर या उनको धोखा देकर उनसे कुछ हथियार लें, वो फ्रॉडुलेंटली हो, वो आप कह लें कि चीटिंग के जरिए हो या वो बिजनेस के जरिए हो, हम उसके खिलाफ हैं। यानी इसका मतलब है कि एक मुसलमान सोशलिस्ट नहीं हो सकता। आया के एक मिनट तो इन्होंने क्वेश्चन किया, पहले आपने क्या आया के ये चीज जो है ये किसी के मुसलमान होने के जो क्या कहते हैं ईमान मुफस्सल या ईमान मुजम्मल के अंदर शामिल है? अगर तो शामिल है मेरा तो ख्याल फिर है नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है नहीं कि शामिल आपने तो फिर और मज़ाहिब बात का है। मुताला नहीं किया है। किसी की जान, माल और आबरू जो है वो एक मुसलमान की माल, एक मुसलमान की जान और एक मुसलमान वो की जवाब ही नहीं दे रहे, एक मिनट, जवाब ही नहीं दे रहे, वेद ही नहीं है, नहीं एक मिनट आपसे बोलना नहीं बनता। आप यार बीच में ना बोलो, वेद ही नहीं है, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो। मुझे ये बताएं, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। इन्होंने कहा कि मज़ाहिब जो है वो दूसरे की किसी भी अपने मजहब वाले की और बार मज़ाहिब सब इंसानों की। एक मिनट यार, ये जरा फिर सुन लेना, रिकॉर्डिंग ठीक नहीं। मैं एक नुक्ता मैं ये पहले ये क्वेश्चन कर मैं जवाब देता हूँ। क्या मौलाना तारिक जमील के जो अकाउंट्स में 49 अरब रुपए हैं वो मुसलमान सोशलिस्ट को उन पर कब्जा कर लेना चाहिए? रियासत को ही कर लेना चाहिए वैसे मेरे ख्याल किस हक से? चले वो बात में बात करते हैं। मौलाना तारिक जमील के अकाउंट्स में जो जायद दौलत है उनकी जरूरत से, जो कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो कि बकौल आपके गलत तरीके से कमाई गई है, उस पर मुसलमान सोशलिस्ट को कब्जा मैंने करना ये कहा है, चाहिए। वैसे ये मैंने कहा है सारा कुछ। आपने कहा कि जरूरत से ज्यादा दौलत कभी भी हाँ, उसके पीछे आपने जुर्म जरूरत छुपा से ज्यादा होता का है, पहले आपने कहा। कहा है कि इर्तिकाज़े दौलत के पीछे जुर्म छुपा यही तो होता है ना। आप अप्लाइड क्वेश्चन से भागते हैं। अच्छा देखिए बात सुनिए, एक मिनट। बात ये है कि हम जिद्दोजहद जो कर रहे हैं सोशलिस्ट, इसमें दूसरी तंजीमों के लोग भी हैं, हम भी हैं। कहां पर मैंने कहा है कि हम रियासत में रहते हुए किसी कानून को फॉलो नहीं करेंगे या किसी कानून को नहीं मानेंगे? मैंने नहीं ये कहा। आपने अभी कहा था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करते मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी बात करता हूँ। मैं मौलाना तारिक जमील की बात करूंगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर क्यों कब्जा करना चाहिए रियासत को। वो मैं बाद में करता हूँ। देखिए वो मैं बाद में बात ये करता हूँ। शख्स जो है ये लोगों को इश्तिहार दिला रहा है। देख लिया वो भी बताता हूँ मैंने रियासत का नाम लिया। अगर इस तरह के खुफिया किस्म के अकाउंट उसके निकलते हैं तो रियासत को सिस्टम के अंदर रहते हुए सरमायादारी के अंदर उन पर बाकायदा तौर पर उनको सीज करना चाहिए और पता चलाना चाहिए कि मनी ट्रेल कहाँ से निकलती है। और सरमायादारी रियासत के मुताबिक अगर ये कानूनन है, ये टैक्स पेड है, तो फिर उनको वापस कर देने चाहिए। हम जो कब्जा करने की बात करते हैं अवाम की तरफ से, वो पूरे के पूरे निजाम को तब्दील करने की बात करते हैं। हम फर्दन जुर्म करने की बात नहीं करते। हम नहीं कहते, हमने ये बात नहीं कही जो आप देखे। बात सुने, इसके बाद जो है ये वाला मुनाजरा या मुकालमा इसको खत्म कर दे। ये मतलब एक इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है मजहबी तौर पर भी और वैसे भी। मैंने इस तरह की बात नहीं की।
मैंने इंडिविजुअली किसी को, एक मिनट बाद में कहता हूं, इंडिविजुअली मैंने किसी एक शख्स को ये नहीं कहा कि वो कोई भी जुर्म करे या कोई भी गैर कानूनी हरकत करे। हाँ, कानून गलत है तो इस रियासत के कानून तब्दील करने के लिए हमें जिद्दोजहद करना होगा अवाम को, और पूरे का पूरा अगर आइन गलत है तो आइन को तब्दील करना चाहिए। और आप तकरीर कर रहे हैं, आप इधर देखिए। तो ठीक है, नहीं मैं उधर मेरी बात सुनिए। आपने जब लोगों को इश्तिहार दिलाना चाहे आपने उधर देख कर दिलाया, तो मैंने तो उनको समझाना कि आपने मेरे को गलत क्या कहा है। आपने उधर कहा है ये शख्स है, ये इस तरह का है, ये फौज के खिलाफ है, ये फलां के खिलाफ है, ये मौलवी तराजी मील के खिलाफ है। आपने उधर देख कर कहा है। This is my last question. लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। इस्लाम प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेंटिटी को तस्लीम करता है, सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी की मैं इस पे एहतजाज करता हूँ। ये इनका काम ही नहीं है, ये लिबरल है, ये अपना सवाल करें, वो अपना सवाल करे, अपना सवाल। आप वो सरमायादारी निजाम के भी जाते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें। इस्लाम को इस्लाम नहीं, आप गलत सवाल ही कर रहे वही सवाल नाजरीन जज करें। आप इस्लाम के आप नहीं बैठे, आपसे उनकी बात तय नहीं हुई सर। आप लिबरलिज्म को, सरमायादारी को दिफा कर रहे हैं, उस पे सवाल करें। एक मुसलमान सोशलिस्ट हो सकता है, तो ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। माशी निजाम जब ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान सोशलिस्ट होता है, ये लोग इस्लाम हो जवाब दे रहे हैं ना, भाई साहब आप सारी मुझे सवाल याद है। एक मिनट, आप ऊंचा बोल के जो है ना, वो कोई इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक है, जो 500 लोग सुन रहे हैं वो तो मुसलमान है ना यार। जो 500,000 आखिरी जवाब है मेरी तरफ से, वो ये है कि मैं शुरू से लेकर अब तक, बाद लोग बाद में आए हैं लेकिन रिकॉर्ड सारा कुछ हो रहा है, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखाई इस बात में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हम सिर्फ उसको कहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी के जरिए दूसरों का इस्तेसाल किया जाए। मेरे ख्याल में दुनिया का कोई मजहब जो है वो सरीहन ऐसा नहीं कहता कि ऐसी प्रॉपर्टी रखे जिससे दूसरों का इस्तेसाल करें। लेकिन हजरत खदीजा के पास जो दौलत थी, लेकिन तो वो चलो बस करो, लेकिन अगर इंडिविजुअली ऐसे लोग रहे हैं बेशुमार जो गुलामों की तिजारत करते रहे हैं या लौंडियों की करते रहे हैं या जो भी करते रहे हैं, आया कि ईमान जो आप मतलब मुख्तलिफ फिरकों से मुसलमान बैठे होंगे, आया कि ये ईमान का लाजमी जुज़ है? अगर नहीं है तो फिर आगे मेरे ख्याल में इस पर बात करने की मैं मज़ीद जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, बंद कर दें। आप सवाल ले लें, नहीं बस करें आप। अच्छा ये अब इसको छोड़ सवाल ले लें, एक एक करके आराम से छोटे मुख्तसर सवाल ले लें। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, सवाल जो है ना आप लिखते जाएं ताकि जो है ना अख्तर को एक पहले मुख्तसर सी बात ये है कि जब मुनाजरा होता है, आमतौर पे जो मुनाजरे हमने इस्लाम के हवाले से देखे हैं, उसमें ये होता है कि एक आग का अलाव जलाते हैं, मिसाल ले रहा हूँ मैं, उसमें दोनों कूदते हैं, जो बच जाता है हम उसके बात तो सुने ना, मतलब मेरी बात सुने, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर दो बंदे डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका मकसद तो ये होना चाहिए था कि दोनों तरफ से सवालात होते, लेकिन अवैध साहब बीइंग ए जर्नलिस्ट वो सवाल कर रहे हैं और डोमिनेंट पोजीशन में आ रहे हैं और सिबगत साहब उनको जवाब दे रहे हैं। एक तो ये चीज मुझे कमी नजर आई। अब मेरा सवाल है मुख्तसर, सवाल ये, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं सोशलिज्म पे, क्या सोशलिज्म एज अ इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में आप बात कर रहे हैं या आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्ट ही हमने इक़्तिदार के लिए है, जबकि आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ज्यादातर बात ही नहीं की। आप कह रहे हैं कि इक़्तिदार कैसे ले रहे हैं और इक़्तिदार कैसे हम आएंगे। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप क्यों इस तरह, मतलब एक चीज को स्टार्ट से हमने आपने इक़्तिदार की बात की कि आप इक़्तिदार कैसे आगे आएंगे, फिर बाद में आप जो है ना मौलाना तारिक जमील साहब के पास है। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ साहब से कि आपने पॉलिटिकल बातें ज्यादा की हैं यहाँ पे, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या जो इकोनॉमिक चीजें मार्क्सिज्म बता रहे हैं उसका आपने जिक्र नहीं किया, इसकी थोड़ा सा वजाहत है। इसकी वजह यह है कि मार्क्सिज्म के अंदर जो इकोनॉमिक मॉडल है
वो बाहर कैफ एक स्टेट मॉडल है। खुद वाइन साहब ने ये कहा कि हम पूरी दुनिया के मुल्कों के ऊपर सोशलिज्म नाफिज करना चाहते हैं, तो ये बहरहाल एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि आप किस तरह से पूरी दुनिया के मुल्कों के ऊपर सोशलिज्म नाफिज करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैठे लोगों को अगर इतना नहीं पता कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेंटिटी क्या है, तो कम से कम उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो मार्क्सिस्ट्स हैं वो किस तरीके से इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इसको फोकस किया। मेरे मैं भी इसका जवाब दे दूं, इस बात का मैं भी जवाब दे सकता हूँ। हमें ना जो भी हैं, चाहे ये मेरे दोस्त लिबरल दोस्त हैं या मुख्तलिफ तंजीमों से या स्टूडेंट बैठे हैं, इनको हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए कि ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि हिस्ट्री में स्लेवरी गुजरी है, उससे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म गुजरा है, उसके बाद फ्यूडलिज्म आया है और उसके बाद सरमायादारी आया। कि कहीं किसी ने पढ़ा है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म ने दुनिया पर कब्जा किया था, स्लेवरी ने दुनिया पर कब्जा किया था फिर आई थी, या इवन सरमायादारी ने दुनिया पर कब्जा किया था तो फिर सरमायादारी आई थी? कहीं किसी ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर ये मतलब सोशलिज्म में ये सवाल क्यों हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं। एक सेकंड, ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ के असूल क्या है मुझे नहीं पता, मैं पहली दफा आया हूँ। वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे बस चले जाना है या कुछ ऑर्डर भी करना है। वो हाँ जी वो ये आप मुझे यहाँ तो पहली दफा इधर आए हो, मुझे नहीं पता। जी ठीक है, अगर सवाल करने तो कर लें। नहीं सर, ये इनका जवाब है, ऑर्डर करेंगे। मेरा एक सवाल है, आप बता दें। मेरा सवाल है, अंग्रेजी में एक कोटेशन है, एंड दिस इज नॉट रेफर्ड टू यू, religion is the last refuge of a scoundrel. In a country, my question is, in a country where you can get killed for simply removing the word Allah Akbar, you are asking someone on religion ताकि वो कोई भी कंट्री की जवाब दें, he can get killed. अगर आप नजरियात में नहीं जीत सकते तो क्या आप दूसरे को मरवाना चाहते हैं? मेरा ये तो पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी जो कोटेशन है आपने गलत कोट की है। कोटेशन नहीं, मुझे आंसर करने देना। कोटेशन ये नहीं है कि रिलीजन इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। कोटेशन ये है कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। और आप इसको चेक कर लीजिएगा और आप अपनी मर्जी से उसमें अल्फाज इनकॉर्पोरेट करके, ठीक है। अब आपने कोड गलत किया है। इट इज पैट्रियोटिज्म विच इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल, इट इज नॉट रिलीजन विच इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। अच्छा, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। जब एक सोशलिस्ट पार्टी लोगों को धोखा देती है, जब एक सोशलिस्ट पार्टी लोगों को धोखा देती है कि एक मुसलमान सोशलिस्ट हो सकता है, तो वो बेसिकली रिलीजन को इन्वॉल्व कर रही है। मैं ये जब एक सोशलिस्ट पार्टी जैसा कि वाइन साहब हैं, वो ये लोगों को बता रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं कि एक मुसलमान सोशलिस्ट हो सकता है, तो वो रिलीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं और मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ। उन्होंने जवाब दिया। मैं जी हाँ, वो क्योंकि ये सारे जो हैं इनमें से मोस्टली बिलीविंग मुस्लिम्स हैं और बिलीविंग सोशलिस्ट्स हैं, सो दे शुड नो कि वो बेसिकली सूखा पानी पी रहे हैं। नथिंग, कैसे सूखा पानी नहीं होता, सूखा पानी नहीं होता। वो भाई मेरी बात सुनो, अपनी आइडियोलॉजी क्लियर करो। जो इस्लाम है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। सोशलिज्म जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने की बात करता है। तो एक मुसलमान कभी भी सोशलिस्ट नहीं हो सकता, राइट? क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन, आपने स्लेवरी की बात की, उसके बाद फ्यूडलिज्म की बात की, डचलिज्म की बात की, आपने कहा कि इसने दुनिया पर कब्जा नहीं किया, ठीक है। इसी तरह उन्होंने पहले आपसे एक क्वेश्चन किया था कि इसमें आखिर क्या वजह है सोशलिज्म के अंदर कि वो कब्जा तो इसने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि हम कब्जे के बगैर जो है ना ये सिस्टम दुनिया के अंदर डोमिनेट करना चाहते हैं। ये भी नहीं कहा कि कब्जे के बगैर करना। लेकिन अगर आपने पहले जो बात की, आपने पहले वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि आपने कहा कि स्लेवरी ने डोमिनेट नहीं किया मतलब दुनिया के अंदर, तो किया है, लेकिन आपने कहा कि पहले जब वो शुरू हुई है कि डोमिनेट नहीं किया और उसके बाद कब्जा नहीं किया। वही तो बात है ना, किसी ने पूछा आप कब्जा क्यों किया। ठीक है, वही बात, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इस सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर ऐसी क्या चीज है जो उन्होंने पहले क्वेश्चन किया था
کہ وہ دنیا کے اندر اس طرح کیوں نہیں پھیل رہی جس طرح کہ یہ کیپٹلزم ہے یا اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے آخر کیا میرے خیال میں 4 سے 5 ہزار سال تک سلیوری جو ہے وہ قائم رہی ہے اور اس کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا. اور اس کے بعد جب چھیڑا ہے, جب کیپٹلزم آ گیا ہے, یعنی سلیوری کے بعد رومن فیوڈلزم آیا ہے, اس کے بعد دوبارہ کیپٹلزم آیا ہے, کیپٹلزم کے بعد دوبارہ سے سلیوری آ گئی امریکہ میں, افریقہ سے. آپ وہ روٹس فلم دیکھ لیں کنٹا کنٹے والی. مطلب یہ ہے کہ سلیوری جو ہے وہ اتنے ہزار سال تک دنیا پر واحد نظام رہا ہے, اور بعد میں آپ کہہ لیں کہ زندگی طور پر ایک صرف امریکہ کے اندر سلیوری رہی ہے, جس کو بعد میں ابراہم لنکن نے جو ہے وہ ختم کیا تھا. دوسری بات, جب کہہ لیں کہ فیوڈلزم کی بات ہے, فیوڈلزم 1000 سے 1500 سال تک چلا تھا. حالانکہ ہم فیوڈلزم کے ابتدائی دور میں ہی, فیوڈلزم کے بالکل ابتدائی دور میں بغاوتیں دیکھتے ہیں. کن کی؟ ہم میرے خیال میں یہ جو تھا اسپارٹیکس وغیرہ کی, وہ رومن فیوڈلزم کے ابتدائی بغاوتیں ہیں جہاں پر فلیپینز تھے اور پیٹریشین تھے تب کی. اس کے بعد جو ہے وہ 1000 سال تقریباً جو ہے وہ چلتا رہا ہے فیوڈلزم, اور بعض ملکوں میں بعد تک دیر تک چلتا رہا ہے, اور پاکستان اور انڈیا میں بعد میں امپورٹ بھی کیا گیا ہے. انگریز باقاعدہ یہاں پر لے کر آئے تھے فیوڈلزم کو, باقاعدہ انہوں نے لے کر آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے قائم کیے, یہاں پر نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد سرمایہ داری آتی ہے. جب سرمایہ داری آپ کہہ لیں 15ویں 16ویں صدی سے جیسے بھی آتی ہے, اور بے شمار انقلابات کے ذریعے آتی ہے. آپ ہالینڈ کا انقلاب دیکھ سکتے ہیں, اسپین کا انقلاب دیکھ سکتے ہیں, آپ انگلینڈ کے انقلابات دیکھ سکتے ہیں, جرمنی کے انقلابات دیکھ سکتے ہیں, فرانس کے انقلابات دیکھ سکتے ہیں. ان کے ذریعے, انقلابات کے ذریعے باقاعدہ قتل و غارت کر کے پھر یہ سرمایہ داری جو ہے وہ دنیا پر قابض ہوتی ہے. اور دنیا پر جب یہ قابض ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں اس طرح قابض ہوئے. اور جتنا ظلم سرمایہ داری نے قابض ہونے کے لیے دنیا پر کیا ہے, اس پر انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. اور اس کے بعد جب ایک آتا ہے, جب 1917 میں یہ ریولوشن ہے, رشین ریولوشن, جس میں نے ثابت کیا بھی کہ آپ, بلکہ چیلنج بھی کیا کہ آپ چیک کر کے بتائیں کتنے بندے مرے تھے, اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کریں. ہاں, کس طرح سے کریں گے, یہ ایک لمبا سوال تھا, اس کا میں جواب بار بار ہم نے دیے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا ایک واحد نظام کے تحت چلنی چاہیے. ایک تمام ملکوں کی معیشت کا مجموعہ اور چیز ہے, اور عالمی منڈی کچھ اور چیز ہوتی ہے. ان دونوں میں ہم فرق کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے پوری دنیا میں, ایک پوری دنیا کے اندر جو سوشلزم ہے وہ اور چیز ہے, اور دنیا کے ملکوں کے اندر سوشلزم جو ہے وہ اس کو ہم اور طرح سمجھتے ہیں. اس پر میں لکھ کر بعد میں جواب دوں گا. اقبال صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ اینٹیٹی کی انہوں نے بات کی, آپ نے کلیکٹیو اینٹیٹی کی بات کی, اور دونوں نے اپنی طرف سے آرگومنٹس پیش کیے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر اس ایک بات پر اتفاق ہو جائے, اگر ہم پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی چھوڑ دیں, کلیکٹیو پراپرٹی کو بھی چھوڑ دیں, اگر ہم یہاں پر اس بات پر اتفاق کریں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں حصول رزق میں مساوات چاہیے, حصول رزق کے معاملے کے اندر ہمیں مساوی ہونا چاہیے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی بات کی بات, کلیکٹیو پراپرٹی بات کی بات, ہمیں حصول رزق میں مساوات کی طرف جانا چاہیے. جس سے پوچھا دونوں سے سوال ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو اگر حصول رزق میں مساوات چاہیے تو پھر آپ اپنی بیوی کے زیور بیچ کر سبزی منڈی سے 50,000 روپے کی سبزی کی ریڑھی لگائیں, چکن کی ریڑھی لگائیں, اور آپ اس بزنس کو ایکسپینڈ کریں. وہ آپ کا پرسنل بزنس ہوگا, اور 2 سال کے بعد آپ ملینر بن جائیں گے, اور وہ پیسے پھر آپ سے سوشلسٹ چھین لیں گے. سوچ رہا ہوں گھر کے پاس اتنے ریڑھی والے ہیں, کوئی بھی مل گیا جواب دے رہے یار. آپ نے سوال صرف جو ہے نا وہ صرف مسئلہ نہیں ہے. جو پہلے ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں نا, وہ اس میں علاج معالجہ, سوشل سیکیورٹی, بڑھاپے کی سیکیورٹی, بچوں کی تعلیم وغیرہ 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 سارا کچھ شامل تھا. ورنہ رزق صرف حصول رزق میں مساوات, وہ دادا صاحب کے باہر لائن لگی ہے, وہ وہاں پر مساوات ہے رزق کے لیے. اچھا, ایک سوال ہے.
सवाल ले ले भाई। सवाल ले ले। मैंने कह दिया सबको चाय पिला दे, सबको चाय पिला दे। अच्छा कितना बिल बनता है, कितने कप का? बंदे कितने वही ना, वो कह रहे 40। सर जी एक सवाल है। नहीं कितने, एक मिनट भाई, चाय जो है ना वो सब पी कर जाइएगा, कोई भी ना जाए वैसे, और चाय के लिए हम जो है ना वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। नहीं कंट्रीब्यूशन करेंगे सर, पैसे कितने खाएंगे? सर जी सवाल सुन ले, सवाल सुने जी। सर जी आपने कहा कि इंसानी तारीख पहले गुलामदारी थी, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया। आपने जो फ्यूडलिज्म बताया कि वो सिर्फ रोमन वगैरह वहाँ पे यूरोपियन में आया, बाद में जो अंग्रेज थे वहाँ या उन्होंने यहाँ पे फ्यूडलिज्म को इम्पोज किया। तो ये आप इंसानी तारीख नहीं बता रहे, सिर्फ यूरोपियन तारीख बता रहे हैं। फिर ये यूनिवर्सल किस तरह हुआ कि पहले गुलामदारी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर सरमायादाराना निज़ाम आया? तो आपने सिर्फ यूरोपियन हिस्ट्री को यूनिवर्सल हिस्ट्री क्यों समझते हैं? मैं नहीं समझ रहा। तो आपने कहा कि फ्यूडलिज्म यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ, जो हुआ उसको मैं कैसे तब्दील कर सकता हूँ अपने अल्फाज से? यहाँ पे क्या जो हुआ वो बताया ना। तो आपने कहा कि पहले गुलामदारी थी, फिर फ्यूडलिज्म था, फिर सरमायादारी निज़ाम। सरमायादारी जहाँ पर फ्यूडलिज्म यहाँ पे यूरोपियन ने इम्पोज किया, तो यहाँ पे हमारी तो नहीं थी। तो आप यूरोपियन तारीख को यूनिवर्सल क्यों समझते हैं? सरमायादारी की बात हो रही है ना, सरमायादारी का सोशलिज्म, सरमायादारी भी वही आई है, सोशलिज्म भी वही आया, तो वही की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है? एशिया पर बात तो नहीं हो रही ना कि एशिया का मोड ऑफ प्रोडक्शन वो होता टॉपिक, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात है। कर लें बात। लेकिन इंसानी तारीख तो इस तरह से हुई कि पहले इंसानी तारीख ऐसे नहीं हुई, इंसानी तारीख जगह जगह बड़े तीन अखबार है, तो हमने ये क्यों स्किप किया बीच में? कौन सा? ये फ्यूडलिज्म वाला नहीं स्किप किया आपने। तो आपने कहा कि यहाँ पे हमने इम्पोज किया, अंग्रेजों ने इम्पोज किया, अंग्रेजों ने। और कैसे हुआ आप बताइए? जहाँ पर इम्पोर्ट की गई ये कह फ्यूडलिज्म को, फ्यूडलिज्म को, ये क्या है? यहाँ पर नहीं था। एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन था। वो गलत है डिबेट है। तो ये अलग चीज है, तो ये अलग चीज है। ये आप सवाल कर रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा अवैध साहब से एक सवाल है। अवैध साहब आपने एक सवाल किया था कि जो सोशलिज्म के अंदर एक स्टैग्नेशन आ जाती है। मेरा सवाल ये है कि सोशलिज्म तो चले कहीं पर भी इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, आलमी निज़ाम है सरमायादारी। इस वक्त कह रहे हैं द इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, सब के सब जो मेन बोर्जुआ जरीदे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक आलमी ग्लोबल रिसेशन सर पे खड़ा हुआ है, अमेरिकन इकोनॉमी 2023 में रिसेशन में जा सकती है। इसकी क्या रीजन है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? और उसके वजूहात भी मैंने इसके जवाब में एक बात की थी कि कोई भी जो निज़ाम होता है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो रिसेशन अभी जो इस दुनिया में है ये कैपिटलिज्म की खामी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सवाल किया है कि रिसेशन की वजूहात क्या है? ये रिसेशन की वजह ये मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। वो कैसे एक्सप्लेन ठीक है, ये मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है कि अगर आपको वही तो सवाल ये कैसे है? ये मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऐसे है कि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर 1000 गंदम की बोरियां लोगों को आटा देने के लिए चाहिए, लेकिन कोई आम आदमी उस गंदम को अफोर्ड नहीं करता, तो वो गंदम एक्सपोर्ट हो जाती है उन मुल्कों को जो कि उस गंदम की कीमत देने का हौसला रखते हैं। तो अब द थिंग इज के बजाय इसके कि आप एक गरीब आदमी को रोजगार दें, उसकी बाइंग पावर बढ़ाएं, उसको मार्केट फोर्सेस की रेगुलेशन के साथ बाकायदा हम आहंग करें। आप सीधा सीधा ये कहते हैं कि जनाब हमें ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ। द थिंग इज कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक गरीब आदमी को ऊपर आने से नहीं रोकता। वो एक ऊपर किसे कहते हैं? मेरा तो सवाल ही हो रहा है। मेरा सवाल सिर्फ मैं एक लाइन में जवाब दे दूं। एक लाइन में कि जो करंट ग्लोबल रिसेशन है उसकी वजह कैपिटलिज्म की इनहेरेंट बुराई नहीं, बल्कि उसकी वजह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और मिस मैनेजमेंट है। सर अब मेरे इसी पर एक क्वेश्चन है, अगर इजाजत हो तो। 1973 में भी एक रिसेशन आया था, उसमें भी यही मसला था। 2008 में आया, उसमें भी यही मसला था। 1929 में आया, तब भी यही मसला था। अब जो आपने कहा है उसमें आपकी बात से जो चीज सामने आई है कि पसमानदा ममालिक जो हैं, ठीक है, वहां पर चूंकि ज्यादा मिसमैनेजमेंट होती है और गंदम का आपने जो बात की, तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क में कोई एक भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं है जो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकता। अमेरिका में रिसेशन है, मेरी बात सुनिए। अमेरिका, मेरा क्वेश्चन मैं भी गया हूँ इंटरनेट के जरिए। यस, इंटरनेट के जरिए मैं गया हूँ। आपको अमेरिका के अंदर कोई शख्स भी क्या भूखा नजर आता है? मेरा ये सवाल है।
कूड़े के साथ एक मिनट यार कह दे देखिए दो सवाल है नहीं मेरा अरे यार मेरा सवाल जज्बाती पहलू से था ही नहीं जो आप जिस तरफ लेकर जा रहे हैं मैं तो सवाल ही और किया मैं तो बिल्कुल प्योरली मैंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया रिसेशन का मतलब सिर्फ भूख बेरोजगारी नहीं होता रिसेशन सबसे पहले तो 2 क्वार्टर्स में जब ना वो ग्रोथ रेट आगे जा रहा हो तो नीचे जा रहा हो सवाल ये है कि इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक रिसेशन का शिकार है किसी मुल्क का ग्रोथ रेट जर्मनी के अंदर क्राइसिस चल रहा है अमेरिका में चल रहा है पूरी दुनिया में कहीं कोई फ्रांस में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज दुनिया जिनका आपने जिक्र किया कि पढ़े लिखे लोग इस निजाम को चला रहे हैं और मजदूर सोशलिज्म में इंग्लैंड में 3 महीने में 3 हो गए सारे पकड़ के ठीक है अब सवाल ये है इस तमाम का रिसेशन के बावजूद जर्मनी में और पाकपतन में रहने वाले शख्स का लिविंग स्टैंडर्ड एक फर्क है पाकिस्तान ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾ सर मालिका आंसर कर रहे हैं आंसर ग्लोबल रिसेशन की वजह से लोगों में 5 करोड़ की घड़ी बेच देने पर वेस्टर्न यूरोप के अंदर इतना अनरेस्ट है तो लोग सड़कों पर निकलकर वाइन साहब के मुताबिक इक़्तिदार पर काबिज क्यों नहीं हो रहे अरे ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप मेरे से सरकार निकले और दे सकते हो आप मेरे से पूछने लगे हालांकि सवाल आपसे पूछना चाहिए था जवाब से करना था जवाब दे देंगे इसलिए अरे एक मिनट 24 मिलियन लोग इस वक्त भूखे हैं अमेरिका की अपनी रिपोर्ट अरे एक मिनट जी जिंदा है आप उनसे अरे यार एक मिनट इसे जिंदगी नहीं कहते इसे जिंदगी नहीं कहते जिंदा है उर्दू में क्या होता है भूखे जिंदा है फूड इनसिक्योर भूखे जिंदा है फूड इनसिक्योर छोड़ दे यार मैं आंसर चलता हूँ यार मैं आई एम गोइंग थैंक यू सर नो चाहे तो बिके जाए